Good morning. Welcome to this webinar. We are just about to start in a few minutes as we wait for the participants to join. Good morning. Welcome to this webinar. We are just about to start in a minute or two, so just bear with us. फैन ऑन कर देंगे थोड़ा। Good morning. We are just about to start. Give us a minute or two and we'll get started with our webinar. We have a very fantastic panel. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत होगी हम सब लोगों के बीच में. तो चलिए आज का वेबिनार शुरू करते हैं. My name is Vipul Jain. I'm the co-founder and president of Catalyst for Social Action, CSA as we are widely known. We started in September 2002 and we work in the area of children in need of care and protection. We have actually worked in a number of different areas. We have worked in the area of adoption facilitation. We in fact have done some work in foster parenting. We have done some vulnerability mapping. But the main area of our work is to work with childcare institutions and to help them increase and improve their level, the way they take care of the children. We also have an aftercare program where children, once they cross 18, we help them in a variety of different ways so that they can get into a decent career. हमारा विजन तो बहुत सिंपल है कि जो भी बच्चा हो जिसके पास फैमिली नहीं हो या फैमिली देखभाल नहीं कर पा रही है, उसके लिए हम सब लोग फैमिली बने और वही ध्यान दें उनको जो हर बच्चा का राइट है, और उस बच्चे को ऐसी उत्साहन दे कि वो आगे बढ़ के एक डिसेंट लाइवलीहुड, एक डिसेंट करियर पाथ पे इंडिपेंडेंट contributing member of society बन सके. So this is about CSA. I am going to introduce very briefly the panel that we have. First of all, I want to thank all my panelists for being part of this webinar, taking their time out and sharing their views. तो हमारे साथ हैं Preeti Patkar. She is the founder and executive secretary of Prerna. She did her bachelor in social work from Nirmala Niketan and then her master's in social work from Tata Institute of Social Sciences. In 1986, she, along with her husband, Dr. Praveen Patkar, started Prerna. Prerna has actually been one of the innovators in this space, working with a lot of very, I would say, vulnerable communities
So the first night care center for children, women living with women in red light areas was started by Prerna. Of course, Prerna has gone on to do many other areas of work. And Dr. Preeti Patkar is definitely one of the most accomplished and impactful NGOs working in the space. फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर कृपा शंकर चौबे. Dr. Chaube is a member of the CWC committee in Bhopal. He's an MBA in hospital management and joined the CWC in 2018. Before that, he's been actively working in the social sector and particularly with focus around education. Dr. Kripa के साथ हम लोग मध्य प्रदेश में हमारा काम काफी होता है. So I can tell you that he's amongst one of the most progressive CWC members that we have come across. We also have Advocate Sushma Mandrekar. She's a practicing advocate in Goa. She worked as the retainer of the North Goa District Legal Services Authority. She's an ex-member of the CWC of South Goa and presently the chairperson of the Goa State Commission for Protection of Child Rights. Okay, so I'm sure she's going to be able to give a lot of insight from her perspective. फिर हमारे साथ हैं Mr. Param Anand. Param is the DCPO in Pune. Before that, he was the DCPO in Thane district. He has more than 10 years of experience working in this whole area of child welfare and protection. He's also worked with Angan Trust, where he was involved in conducting a lot of CCI evaluations. फिर हमारे साथ हैं Dipesh Chokse. Dipesh has done his master's in social work from Devi Ahilya Bai University in Indore. He has worked extensively in the field of child protection. He's a master trainer on the JJ Act, the ICPS scheme, and many other laws and regulations. He has been with CSA since 2014 and the regional manager responsible for the work that we are doing in Madhya Pradesh. So I think we have a great panel. This webinar is around voices from the ground. जितने भी हमारे पैनलिस्ट्स हैं वो बच्चों के साथ हर दिन काम करते हैं. तो जो ग्राउंड रियलिटी है उसको वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बच्चों को हम कुछ हेल्प कर सकें. तो इस समय जो पेंडेमिक है, अभी 5 महीना खत्म हो गया है और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ खत्म होने वाला है. Where is the light at the end of the tunnel? So in this webinar, we are really going to focus around what is the impact of the pandemic, right? And how are the authorities responding to this? इससे पहले जो हमने वेबिनार किया था कोई 10 दिन पहले, उसमें हमने Voices for the Ground, हमने अलग-अलग CCIs जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन चलाते हैं उनसे हमने बात करी थी और थोड़ा सा उनका पर्सपेक्टिव, उनके चैलेंजेस अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी थी. दिस इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन, ठीक है ना? क्योंकि ये जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, दिस इज एक्चुअली अ पार्टनरशिप बिटवीन द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एंड NGOs वर्किंग ऑन द ग्राउंड and the district authorities whose ultimate responsibility it is. तो ये loop complete करने के लिए, दोनों तरफ से सुनने के लिए, this is the purpose of this webinar. And I am sure कि ये जो हमारी चर्चा होगी इसमें कुछ बहुत interesting चीजें निकलेंगी, best practices निकलेंगी, क्या क्या अच्छा काम हो रहा है वो निकलेगा, जो challenges हैं आगे हम सबके लिए वो थोड़े से सामने आएंगे. तो मैं अभी
पैनल से सबसे पहला क्वेश्चन ये करता हूं कि ये 5 महीने में कोविड में, ठीक है, आपको क्या देखने को मिला है? What are the things that you have seen in the last 5 months since the COVID has impacted our country? तो मैं सबसे पहले डॉक्टर चौबे से शुरू करता हूँ. Yeah, thank you very much and good morning. See, the biggest issue during the COVID which we face, the children we basically face two kind of challenges. One for those who are living into the CCIs, and second the children who are living on the street. So लॉकडाउन में जो बच्चे इंस्टीट्यूशंस में रह रहे थे उनके साथ बाहर जाना संभव नहीं था, कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट की पॉसिबिलिटीज नहीं थी. सो उनके साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए, कुछ ऐसी कैप्सूल टाइप की चीज़ें की गई डे टू डे एक्टिविटीज़ में, जिससे कि वो अपने आप को इस तरह से महसूस ना करें कि एक ही जगह पे बंद होके रह गए हैं. सो we take the help of UNICEF plus the Department of Women and Child Development, state government, with the help of various counselors, we plan the regular counselings into the CCIs. So 1 घंटे 2 घंटे का एक पर्सनल काउंसलिंग सेशन के साथ पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी CCI थे सब में उन लोगों ने बात किया, and we try to came out with the problems or the difficulties with the children were facing into the CCI. उसके आधार पे कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे लॉकडाउन के समय में महाभारत और रामायण जैसे सीरियल टीवी पे ब्रॉडकास्ट किए जा रहे थे, तो उनसे छोटी छोटी नृत्य नाटिका बनवाई गई बच्चों को, जिससे कि वो उसमें डे टू डे ड्रामा में उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो उनका टाइम निकलता है. बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, जो एक मध्य प्रदेश में हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था उस दौरान. Of course, lot many painting competitions, then story writing, all these things were also done on the routine activities. So this was first thing which we did, and major challenges which we faced for the children, those who were living into the CCIs. Now come to the second part. आप लोगों ने भी देखा होगा, अचानक से बच्चों की एक भीड़ सी आ गई सड़क के ऊपर. मेजर प्रॉब्लम वाज दैट कि आप उनको किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं रख सकते थे, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर about the pandemic situation, whether they are exposed to the COVID or not. So उनके साथ एक खुशहाल नौनिहाल करके पहले ही ऑपरेशन हमारा भोपाल में चल रहा था, जिसमें अराउंड 340 या 370 बच्चों पे हम काम कर रहे थे. Of course, 10 or 11 NGOs were involved into that. We were looking after their education, their family rehabilitation, all those things. So कुछ आइडिया हमको इसके पहले ही था कि इन बच्चों के साथ कैसे डील करना चाहिए. तो अलग अलग कॉलोनीज में जा करके फूड पैकेट्स बांटे गए उनको, करीबन 5000 पैकेट्स पर डे फूड के डिस्ट्रीब्यूट करे गए उनकी फैमिलीज को अलग अलग एनजीओज के द्वारा, जिससे कि अगर फैमिली कंफर्टेबल है तो बच्चे ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल होते रहेंगे. अभी तक ऐसा नहीं है कि हम उस प्रॉब्लम से पूरी तरह बाहर आ चुके हैं, अभी भी है वो प्रॉब्लम. बच्चे स्ट्रीट पे दिख रहे हैं, लेकिन हमें कहीं दिखते हैं तो बच्चों से बातचीत करके उनका क्या इश्यूज है. एक मेजर प्रॉब्लम इस दौरान आया कि फैमिलीज अनएम्प्लॉयमेंट वाज अ प्रॉब्लम. तो जॉबलेस जो फैमिलीज हो गई थी, उन्होंने सब्जी का ठेला लगाना चालू कर दिया या कुछ और चीजें चालू कर दिया, एंड दे इन्वॉल्व देयर चिल्ड्रन इनटू दैट. छोटे छोटे बच्चों को साथ ले करके उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया. तो उस चक्कर में क्या हुआ कि हमने उनको भी समझाया कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, छोटे बच्चे के साथ आप ठेले पे लेके जा रहे हैं वो गलत है. कुछ फैमिलीज को समझाया, कुछ लोगों ने माना, बट लार्जली इसमें हमने एनजीओज के साथ मिलकर के कुछ छोटे छोटे सेंटर्स भी बनाए हैं, जिसमें कि अपने सोशल मीडिया के द्वारा, सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा कुछ पढ़ाई चल रही है. चाइल्ड लाइन में इसने बहुत अच्छा काम किया. आरंभ स्पेसिफिकली अर्चना जी का जो इंस्टीट्यूशन था, उन्होंने चाइल्ड लाइन के अंदर ही बच्चों को बुला करके 1 घंटे 2 घंटे की ऑफकोर्स फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके लिए क्लासेस लगाया. तो ये कुछ 2-4 चीजें जो हमने किया इस दौरान में, और जो मेजर था कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए था. जी, तो अभी आपसे आगे बात करेंगे और क्या क्या इनिशिएटिव्स करे हैं. बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स करे हैं मध्य प्रदेश में, फिर आपसे बात करेंगे. लेकिन अभी मैं चलता हूँ सुषमा जी से. थोड़ा गोवा के बारे में बताइए, कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा है, कैसे आप लोगों ने उसको डील किया है.
थोड़ा आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सुषमा जी। ओके, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गोवा में हम लोगों ने एक्चुअली गोवा इज अ टूरिज्म प्लेस, तो टूरिज्म प्लेस होने के बावजूद इधर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग अपने रोजी रोटी के लिए आते हैं। तो इधर क्या हुआ कि जो हमने चिल्ड्रन इन नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन को जो देखा, जो मोस्टली जो मजदूरों के बच्चे हैं जो बीच एरियाज पे काम करते थे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते थे, और जो उनका क्या होता है सिर्फ टूरिज्म सीजन में आना, इधर काम करना, 3-4 महीने के लिए रहना और फिर बाद में चले जाना। इससे क्या होता है कि उनके लिए परमानेंट शेल्टर नहीं रहता, इधर खाने पीने के लिए वो जब रोजी रोटी के लिए बाहर निकलते तभी उनको काम मिलता है। तो इस बार दौरान क्या हुआ, वो सीजन ही जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ वो टूरिज्म का सीजन था, तो उस वक्त बहुत सारे लोग इधर आए हुए थे जो काम करने के लिए कंस्ट्रक्शन सिविल साइड पे टूरिज्म पे, और अचानक लॉकडाउन होने के कारण उन लोगों का सब कुछ इधर खत्म होना ऐसा हो गया, खाना पीना भी नहीं मिल रहा था। तो एज अ chairperson of the child rights commission, through government has established a shelter homes here, shelter home for those who were like stranded laborers, who were stranded in a lockdown, and they were allowed to stay there. They were provided all the food facilities to the children as well as the others. So it is also observed that many a times this, when they come here in the state of Goa, they keep the children in shelter homes. So they are temporarily allowed to stay there, but in shelter homes, so also in a childcare institution, these children, they mostly, this NGOs, what they do, with the help of the migrant labor, they convince them to allow these children to stay in a children's home for the temporary period. So during that time, it was found that these children who are in a children's home, they were also facing difficulties of food and other things. So through civil supply department, government has made an arrangement for providing a ration quotas to these children in the CCI. So other facilities were also found. Other way, if we see children who are normally in the state of Goa, who are inhabitants of state of, there are three-way impacts on these children. That was physically, mentally, and psychologically. The reason was that because of lockdown, there was a restricted movement. So children remain locked down in a home only. So they were not allowed to move out. So because of the economic loss, economy has gone down. So because of that, parents were facing a financial crisis. They were not able to provide a proper nutrition to the children and other facilities and benefits to the children. So what happened, because of that, they were psychologically getting depressed. So what the commission as well as government started providing online counseling for these children. There are many other NGOs who came forward to provide online counseling. Also other facilities and benefits were provided to the children. Even the children who are not found on the streets, who are in begging, as well as in the child labor, they were rescued and provided a shelter also. So also at the relevant time, it was very difficult, like, because we have found that children are not habituated to stay in a shelter homes or anything. But still, we tried our level best to reach to all the children. Again, now presently the commission has designed a webinars for these children who are in CCIs, or also now because of government also started with the online classes, online education, and Goa was the first state to conduct the SSC exam here, where it was very difficult for us, relevant, and because many of the NGOs and the challenge is that government wants to take a SSC exam, but we still, as a commission, as a part of the commission, I supported the 10, and the exams were conducted successfully. But that was also a benefit on the side that children were psychologically, who were depressed, were a little bit relaxed, like, and because of starting of online classes, the children who are normally in the families are really, means they are getting involved in other activities. But still we need to work in a better way and better areas, so that NGOs can coordinate and cooperate with them. Right now, तो सुषमा जी विल कम बैक टू एजुकेशन वगैरह का थोड़ा सा देर में और बात करेंगे। तो यही हमारे यहाँ गोवा में हुआ था, लेकिन छोटा सा गोवा है, लेकिन हमने टैकल किया, ऐसा ही मैं बोल सकती हूँ। नहीं, आई नो कि गोवा इज एक्चुअली जो गवर्नमेंट 2018 में सर्वे किया था of childcare institutions. So I think Goa is actually ranks very high on most parameters compared to other states. तो वापस आएंगे आपके पास। अभी मैं चलता हूँ परम के पास। परम, आप डीसीपी ऑफिसर हैं पूना में, थोड़ा सा बताइए पिछले 4-5 महीने कैसा रहा? पुणे तो हॉटस्पॉट एरिया है सर कोविड के लिए। थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे। हाँ। पुणे में बहुत सारे केसेस अभी रिसेंटली डिटेक्ट हो रहे कोविड के,
और यहाँ पे कोविड का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से यहाँ पे CCI भी बहुत है मेरे यहाँ पे, तकरीबन 50 CCIs है और 7 एडॉप्शन एजेंसीज है, और वहाँ पे तकरीबन सब मिला के अराउंड 2200 चिल्ड्रन इन CCI में है। तो पहले हमने ऐसा सोचा कि जो बच्चे हैं CCI में वो बच्चों का बाहर के लोगों से संपर्क ना आ जाए, जो भी वर्कर्स है वहाँ के एम्प्लॉयज है वो बच्चों के साथ मिलते हैं, डे टू डे काम करते हैं, लेकिन उनका जो भी बाहर से आने वाले लोग हैं उनसे कम संपर्क हो ताकि बच्चे कोई भी कोविड अफेक्ट ना हो जाए। इसके लिए हमने रोटेशन किया है स्टाफ का, जो अंदर रहते हैं स्टाफ वहाँ पे रेसिडेंशियल कंटिन्यू रहे तो वो बाहर के लोगों से संपर्क ना आ जाए। दूसरी बात, बच्चों को एंगेज करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटी हमने किया था, अलग अलग एक्टिविटी है, जैसे कि एजुकेशन के लिए है, वेबिनार है, काउंसलिंग सेशन, वो सारे चल रहे हैं। एक एरिया था हमारा जो रेड लाइट एरिया है पूना में, वहाँ कोविड के बेस में जब लॉकडाउन था तो वहाँ के बच्चों के लिए दूध की सप्लाई, जो यहाँ के कातरज डेयरी है उनके माध्यम से 150 बच्चों के लिए पूरा लॉकडाउन पीरियड में डेली दूध सप्लाई फ्री में हमने करवा दिया था। तो बच्चों को जो डेली नीड थी वो हमने सॉर्ट आउट किया था। दूसरा, जो बच्चे लॉकडाउन के दौरान आएंगे CCI में, वो बच्चों से दूसरे बच्चों का संपर्क ना हो जाए कोविड का, इसलिए हमने तीन CCI सिलेक्ट किए। उसमें 0 to 6 ईयर एक अडॉप्शन एजेंसी को सिलेक्ट किया और लड़कियों का अलग होम। तो जो भी लॉकडाउन के पीरियड में बच्चे आएंगे वो CWC के माध्यम से वही संस्था में जाएंगे, दूसरी संस्था में नहीं जाएंगे, और वहाँ पे उनको 14 दिन का क्वारंटाइन अलग से सेपरेट उसकी व्यवस्था की थी। तो इस माध्यम से हमने वहाँ पे एक्टिविटी किया है। और डे टू डे हमने क्या किया है कि डेली 11 बजे के पहले हम सभी CCI को कॉल करते, वहाँ पे कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव है या कोई कर्मचारी कोई पॉजिटिव निकला है या नहीं है, तो हेल्थ स्टेटस क्या है बच्चों का, कोई वायरल इन्फेक्शन है क्या, कोई कुछ भी हुआ है तो तुरंत वो कॉल बैक करें। दिन में 2 बार उनका फॉलोअप होता है और उसके हिसाब से हमने उसका अरेंजमेंट प्रोविजन करते हैं। तो हाँ, तो और दूसरी वापस हाँ, आएंगे परम जी। हम आपसे और भी सुनना है। अभी हाँ। मैं चलता हूँ प्रीति जी के पास। प्रीति जी, थोड़ा आप कुछ शेयर करिए इसके बारे में। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं शुरुआत करूंगी एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। आई थिंक एक जो बहुत अच्छी चीज हुई CCIs को और JJ सिस्टम के लिए वो था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, क्योंकि कहीं ना कहीं पैन इंडिया मुझे लगता है एक यूनिफॉर्मिटी आ गई टू सम एक्सटेंड इन अंडरस्टैंडिंग क्या स्टेप्स लेने हैं टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। तो एक बहुत ही बेहतरीन गाइडलाइंस, एक शुरुआत जो इस तरह के पैंडेमिक के समय बहुत सारा पैनिक होता है और पैनिक से बहुत सारा शायद गलत निर्णय ले बैठते हैं और हुआ भी गलत निर्णय, मगर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ब्रॉट सम यूनिफॉर्मिटी। इसी ऑर्डर की वजह से मुझे लगता है महाराष्ट्र जैसे राज्य में तुरंत सरकार ने JJ फंड डिक्लेयर किया हर डिस्ट्रिक्ट के लिए टू हेल्प द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस टाइड ओवर दिस लॉकडाउन, दिस पैंडेमिक पीरियड। तो वो एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस रहा। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इतना सारा बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इतना सारा एम्फेसिस दिया गया मेंटल हेल्थ नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। कहीं ना कहीं ये चर्चा चालू हुई। आई सॉ सो मेनी वेबिनार्स अराउंड दैट, और इसके पहले ये चर्चा नहीं थी। सो दैट इज अनदर गुड थिंग जो हम पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। हाँ, एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन मैंने देखा, जैसे परम बता रहा था DCPO और डिस्ट्रिक्ट विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर ने मिलकर बीट आफ्टर केयर लीवर्स जो थे उनके लिए, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के लिए तुरंत रिलीफ मेजर के बंदोबस्त करने को चालू की, विच वाज मच रिक्वायर्ड एंड अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। मगर यहाँ पे इतना सब कुछ जो हमने पॉजिटिव हमने देखा कि
यूनिफॉर्मिटी आई, सेंसिटिविटी आई, मगर फिर भी गैप्स था। जैसे ऑन वन हैंड वी सॉ बहुत सारा CWC थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, टेकिंग डिसीजंस, थोड़ा एक मैल आगे जाकर डिसीजन लेना, लीडरशिप बताना। उसी के साथ हमने थोड़े CWCs को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक्सट्रीमली कॉशियस, एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव रीडिंग उसका किया गया। मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट में तुरंत आफ्टर द लॉकडाउन, 2 या 3 वीक्स आफ्टर द लॉकडाउन, एक बच्चा इतना एंशियस हो गया कि मैं यहाँ हूँ मगर मेरी माँ का क्या होता वहां हाल होगा। तो वो बच्चा घर संस्था से भाग गया, और जब उसको ढूंढ के ट्रेस करके लाया गया, उसने CWC को बोला आप कितना भी मुझे यहाँ रखोगे, मैं भागने की कोशिश करूंगा क्योंकि आई एम वरीड अबाउट माय मदर। तो यहाँ पे CWC ने बहुत क्रिएटिवली सोच के कहा ठीक है हम बच्चे को माँ के पास देते, माँ को पूछा इज इट ओके, एक NGO जुड़ाया उस बच्चे को के साथ, DCPU को ऑर्डर निकाला, फॉलो अप विद द चाइल्ड, और बच्चे का काउंसलिंग किया कि एट एनी स्टेज यू वांट टू कम बैक, आप हमको बोल देना, वी विल ब्रिंग यू बैक टू द CCR। ये एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पे CWC कॉशियस थे, वहां पे आज 5 महीने हो गए हैं and there are children who are waiting to be united with their parents, जिनको शेल्टर बेस्ड रिहैबिलिटेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो मे बी 17 साल 9 महीने या 17 साल 11 महीने के थे जब वो घर से भागे, और वो CCI में मार्च के फर्स्ट वीक में आए। एंड they thought 18 साल के बाद मुझे वापस I'll be reunited, and you won't believe it, 5 महीने वो अभी भी यहाँ है। CWCs aren't understanding कि आफ्टर केयर आप उन्हीं बच्चों को दे सकते हैं who consent for aftercare. You cannot force aftercare to children. तो इस प्रकार के जो स्ट्रेस माने क्या होता है, एंजाइटी माने क्या होता है, द वर्स्ट इज अभी ना थोड़े चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में बिकॉज ऑफ सेपरेशन एंजाइटी जो पेरेंट्स भी सफर कर रहे हैं, बच्चे भी सफर कर रहे हैं, चिल्ड्रन अभी ग्रीविंग स्टेज में गए हैं। और बहुत बार मुझे लगता है कि बच्चे जब ग्रीविंग स्टेज में जाते हैं उनको वापस लाना उस स्टेज से is a chance, and children stop trusting adults. हम बोलते हैं कि we are there to help you, मगर हमारे actions नहीं बता रहे हैं कि we are helping you. तो हमने दोनों प्रकार का देखा, मगर I must congratulate the spirit of collaboration जो मैंने खुद अनुभव लिया है, and many people have experienced it. And I feel moving forward वो spirit of listening to children, listening to adults, listening to each other, and mutually working out a path of rehabilitation, a positive intervention, case to case basis in the best interest of the child is the need of the hour. Thank you very much. चलिए इसके बारे में और बात करेंगे। तो अभी मैं चलता हूँ दीपेश के साथ। दीपेश, शायद हमने कुछ सर्वे किया था CSA ने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का, केयर लीवर्स का, कि कोविड का क्या इम्पैक्ट है, थोड़ा सा आप शेयर करेंगे क्या? डेफिनेटली बिल्कुल। सो जब हम ये कोविड की बात कर ही रहे हैं, पैंडेमिक की, तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस रहा था, जैसे ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, देन आई विजिटेड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड सर्टेन सप्लाईज टू देम। सो वहाँ पर बच्चे ने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बोला था, जिसने शायद अभी तक सबसे भारी स्टेटमेंट था। उसने बोला कि लॉकडाउन हमारे लिए नहीं है, ये लॉकडाउन आप लोगों के लिए, क्योंकि हम तो यहाँ पर CCIs के अंदर, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऑलरेडी सेफ हैं, सिक्योर्ड है, बट ये अब आपको देखना है कि आप बाहर कैसे रहते हो। ऑल्दो वहाँ पर फिर अगर हम इस लॉकडाउन को समझे तो फेज वाइज इसके अंदर अलग अलग उन्हीं बच्चों के चैलेंजेस निकल के आए हैं, बहुत सारी चीजें निकल के आई है। सो यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स है वो अगर इन बच्चों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, सो उन बच्चों की जगह अपने को रख के देखिए जो
4 महीने या 3 महीने एक ही घर के अंदर रहे हैं और उन्हीं फेसेस के साथ इंटरेक्ट करा है और उन्हीं चीजों के साथ, तो शायद आप उन बच्चों को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज को, उनके फर्दर डेवलपमेंटल चैलेंजेस को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तब आपने इन 4-3 महीने घर में बैठे हैं और उस तरीके से रहे जैसे बच्चे रहते हैं। सो यस विपुल, मैं आगे बढ़ता हूँ। सो इस पेंडेमिक के अंदर सीएसए ने काफी सारे इंटरवेंशंस करे हैं। उन सारे इंटरवेंशंस के अंदर सबसे ज्यादा हमारे सामने चैलेंजेस था कि जो हमारे आफ्टर केयर के जो केयर लीवर्स है, जिन्होंने अभी संस्था को कुछ समय पहले छोड़ा है, आफ्टर केयर के बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं और वो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, रिहैबिलिटेट होने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में रीइंटीग्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं। तब उन लोगों ने इस चैलेंजेस को कैसे डील करा, इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा स्टडी करी थी। आई रिक्वेस्ट सत्यजीत टू शेयर स्क्रीन। सो हमने अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर इस चीजों को समझने की कोशिश करी। सबसे पहले उन केयर लीवर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है, जहां पर उन्होंने अभी काम करना शुरू करा 1-2 महीने पहले या कुछ महीने पहले से, तो उनकी जॉब सिक्योरिटी कैसी थी। सो जब हम बात करें तो यहाँ पर मार्च अप्रैल की बात करें तो मार्च के अंदर हम देखते हैं 66% जो केयर लीवर्स थे उनकी जॉब सिक्योर थी। वहीं पर 58% बच्चों की जो जॉब थी वो अनसिक्योर हो गई और वहां पर उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि इनके साथ ये रहता है कि ये केयर लीवर्स ने कभी भी इनिशियली अपनी सेविंग्स नहीं करी है। इनिशियली इन्होंने कभी भी इस विषय में नहीं सोचा कि मैं अपना रेंट कैसे पे करूंगा। इनके सामने कभी इन्होंने इतना ज्यादा ग्रोसरी का स्टॉक करने का कोशिश नहीं करा। द काइंड ऑफ अ जॉब, काइंड ऑफ अ नेचर दे आर डीलिंग, ये एक बहुत बड़ी वरी निकल के आई। वहीं पर हम आगे बढ़ते हैं तो मार्च और अप्रैल के अंदर 17% बच्चे जो केयर लीवर्स थे, देवर अनश्योर अबाउट देयर जॉब कि वो कंटिन्यू रहेगी या कंटिन्यू नहीं रहेगी। सो अप्रैल के अंदर 23% बच्चे जो केयर लीवर्स थे उनकी जॉब अनसिक्योर हो चुकी थी। सो एक बहुत बड़ा सर्वाइवल का इशू यहाँ पर निकल के आ गया। इसी ड्यूरेशन के अंदर वी आर रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम केयर लीवर्स कि सर मैं यहाँ पर हूँ, इस जगह पर फंसा हूँ। कुछ केयर लीवर्स काफी दूर फैक्ट्री के अंदर काम करते थे। दे वर आस्किंग कि सर यहाँ से हम कैसे निकले, हमें कैसे सपोर्ट मिलेगा। देन लिंक विद डिफरेंट अथॉरिटीज, एक नया तरह का स्ट्रगल, नया तरह का चैलेंज शुरू हुआ। अगेन हम बात करते हैं कि सैलरी की। सो 51% बच्चे जो केयर लीवर्स थे उन लोगों को सैलरी जो है मार्च के अंदर रिसीव हुई थी। वहीं पर 30% केयर लीवर्स को ही सैलरी रिसीव्ड हुई। बाकी के जो 70% केयर लीवर्स थे उन लोगों को सैलरी रिसीव नहीं हुई। अब सैलरी रिसीव नहीं है तो अगेन मोबाइल के रिचार्ज से लेकर रेंट पे करना, रेंट पे करने से लेकर उनका ग्रोसरी, एवरीथिंग उनके सामने बहुत बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने निकल के आ गया। देन अबाउट द जॉब कि उन्हें लग रहा था मार्च के अंदर कि हम लोग जॉब कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे कुछ जवाब नहीं निकल के आए। वहीं पर 14% जॉब ही केयर लीवर्स थे जिन्होंने बोला था कि हम लोग, हमारी जो जॉब है वो छूट जाएगी, और बहुत सारे यहाँ पर चैलेंजेस निकल के आए। देन नॉट, अब इस पूरे पैंडेमिक के अंदर 17% जो केयर लीवर्स थे वो मार्च के अंदर नॉट कॉन्टेक्टेबल थे। वही जो है बढ़कर 19% हो गया अप्रैल के अंदर। और उसको अगर हम और नेक्स्ट मंथ के अंदर बढ़ाएंगे तो केयर लीवर्स जो है जिनके साथ हमारा क्लोज एसोसिएशन था, पैन इंडिया, जहाँ पर हम काम करते थे, इनके साथ रेगुलर टच में रहते थे, रेगुलर सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। सो वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा है। सो अगर केयर लीवर्स को समझना है, उनके स्ट्रगल्स को समझना है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, सो हमें बहुत इन डेप्थ जाना पड़ेगा और बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी। सो थैंक यू दीपेश फॉर दैट। तो अभी जैसे हम सब लोगों ने शेयर किया तो बहुत क्लियरली अलग अलग चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। एक तरफ है challenges of families or children who are more vulnerable, either due to migration, due to loss of jobs, due to the situation that is there. We know that Childline is receiving far more calls, 40% more calls in April compared to what the previous
history that is there, more calls relating to child abuse, child marriages, etc. तो एक तो ये चैलेंज है जो बाहर बच्चे हैं जो वनरेबल हैं. दूसरा चैलेंज है जो CCIs के अंदर हैं. तो जैसे हम सब लोगों ने सुना, वो अपना अथॉरिटीज ने, CCIs ने टेक केयर किया है कि भाई वो बच्चे बाहर नहीं जाएं, बाहर के लोग अंदर नहीं आए. लेकिन वो जो उनका हाउ डू वी यूज देयर टाइम, हाउ डू वी हैंडल देयर मेंटल स्ट्रेस, ठीक है, और उनका ये टाइम प्रोडक्टिवली कैसे हम इस्तेमाल करें, वो सेकंड चैलेंज है. और थर्ड जो है CCIs के लिए, हमने देखा है पिछली वेबिनार में काफी चर्चा हुई थी कि जो CCIs हैं उनके जो फंड्स हैं, कुछ तो आते हैं गवर्नमेंट से कुछ CCIs के लिए, काफी कुछ वो लोकल डोनर्स पे डिपेंड करते हैं. लेकिन क्योंकि लोकल डोनर्स उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, तो उनको फंड्स और जो बेसिक इसेंशियल समझ लीजिए उसका भी दिक्कत सामने आ रहा है या आ सकता है. और चौथा, जैसे आपने सुना, केयर लीवर्स हैं जो अभी अपने, पहले तो वैसे भी उनके साथ मुश्किल है कि कैसे वो अपना डिसेंट जॉब लें, लेकिन आप ये समझिए कि जिसके पास मेहनत करी है, कुछ स्किल ट्रेनिंग करी है, कोई एजुकेशन किया है और जॉब में है, और जैसे आदमी को लग रहा है कि सब कुछ अभी ठीक होने वाला है, उस समय ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उससे एकदम बिल्कुल ही वो डगमगा जाता है. तो ये 4 अलग एरियाज हैं. हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे. तो मैं पहले एरिया में जाना चाहता हूं कि ये जो बच्चे बाहर हैं, outside the system, right? They are not within the child care institution, they are outside. उन बच्चों को to protect them, क्या कुछ steps गवर्नमेंट या आप सब लोग उठा रहे हैं? कुछ तो मैंने सुना which I thought was very interesting कि स्पेशल शेल्टर होम्स बना रहे हैं जहां बच्चों को लाया जाए, कुछ समय के लिए रखा जाए. कुछ थोड़ा सा और सुने इस बारे में, तो कौन इसके बारे में बात करना चाहेगा? सुषमा जी से शुरू करें. बच्चे जो बाहर, आपने सर बोला कि बच्चे जो बाहर है, मोस्टली मैंने आपने बोला कि बच्चे बाहर है मोस्टली बिकॉज ऑफ द गोवा बीइंग अ टूरिज्म, दिस चिल्ड्रन because of tourism season, these parents have come down to Goa for the work here. लेकिन ये क्या हो रहा है कि बच्चे जब ये बाहर रहते तो एब्यूज हो रहे हैं, मीन्स बैगिंग में जा रहे हैं, चाइल्ड लेबर में जा रहे हैं, और अदरवाइज दे आर रोमिंग ऑन द स्ट्रीट. So even if the government provides a shelter home temporarily, they allow like to be in a shelter home, but permanently they are not, don't want to be in a shelter home. So it will be better if we provide them some alternative care, if we carry out a study at the grassroots level and try to find out exactly which are the children, from which state they have come, if we can rehabilitate them or reintegrate them with the system, like JJ system, like it can be a adoption, foster care, or other sponsorship areas. There we can provide a better facility, because most of the time it has been observed that we are placing these children in a system, but after certain moment of time, after 18 years, they are out of the system, they are not safe. So it will better if we utilize this alternative care methods for providing a shelter to these children. That will be a better way, instead of just placing them in shelter home for the temporary break. That will be best possible option for them, according to me, because this is my observation here. Hello. हाँ, नहीं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच. थोड़ा सा और व्यूज सुनते हैं. डॉक्टर चौबे, थोड़ा आप बताइए, शेयर करिए. Yes. जैसे सुषमा जी बता रही थी, we need to work for a long term planning. Of course, the temporary plan may be that provide them the shelter home, but that's not the ultimate solution. So उसमें देखते हुए हम लोगों ने एक जो छोटा सा ग्रुप बनाया है, जिसमें करीब 70-80 लोग हैं, वेरियस डिपार्टमेंट के लोग हैं, स्टेक होल्डर्स के अलावा, जैसे DCP हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, फूड डिपार्टमेंट के लोग हैं, राशन कार्ड के लोग हैं, जो बनाने वाले लोग हैं, आधार कार्ड के लोग हैं. उन सारे लोगों के साथ मिल करके उन बच्चों के गवर्नमेंट की योजनाओं से कैसे जोड़ा जा सकता है, उस पर एक काम किया जा रहा है. एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं. क्या होता है, इन बच्चों को हम एडमिट तो करा देते हैं स्कूल में,
पर वो जिस माहौल से आते हैं और उनको स्कूल में जो माहौल मिलता है, समटाइम्स वहाँ पे भी उनके साथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ भेदभाव होने लगता है, या लोग उनको बोलने लगते हैं, टीचर्स ही बोल देते हैं, अरे तुम तो ऐसे झुग्गी झोपड़ी से आ रहे हो, तुम क्या पढ़ोगे। तो इस पूरी प्रोसेस को सेंसिटाइज करने की आवश्यकता थी। उसके लिए हमने पुलिस के साथ मिलकर के मीडिया का सहारा लेते हुए न्यूज़पेपर्स में दिया, दूरदर्शन पे दिया, एफएम के माध्यम से दिया कि इस तरह के अगर कोई बच्चे आपको मिलते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारे पास कुछ योजनाएं हैं जिनसे जोड़ करके हम इन बच्चों को लॉन्ग टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल कोर्सेज देने की प्रयास करेंगे। तो ये एक समग्रता के साथ लॉकडाउन के समय हम लोगों ने प्रयास किया। जो बच्चे बाहर रह रहे थे उनको किसी न किसी माध्यम से उनकी पात्रता पर्ची बन जाए, एटलीस्ट उनके पास एक राशन मिलने लगे, उनको स्कूल से जोड़ दिया जाए। ऑफ कोर्स इस समय स्कूलिंग तो पॉसिबल नहीं था, बट ये उसमें एडमिशन अगर हो जाएगा तो समहाउ ऑनलाइन क्लासेस लगने लगे, कुछ इस टाइप की चीजें करने लगे। सो दिस वाज द मैकेनिज्म व्हिच वी डेवलप्ड एंड व्हिच वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट मैकेनिज्म। बहुत अच्छा, थैंक यू डॉक्टर चाबे। परम जी, कुछ आप शेयर करिए, पूना में महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? थोड़ा अनम्यूट करना पड़ेगा। पूना में हमने एक प्रैक्टिस ऐसा किया था कि कुछ और संस्था है अलग अलग, जैसे कि होप फॉर द चिल्ड्रन ऐसे एक एनजीओ है, या यहाँ पे पूना में अलग अलग एरिया में काम करते हैं चाइल्ड राइट्स पे। उन्होंने कम्युनिटी किचन का कंसेप्ट भी लाया था, जिसके माध्यम से जो वल्नरेबल कम्युनिटी है, जो खदान में काम करते हैं, ऐसे बच्चों, वहाँ पे जो बच्चे भूखे मर रहे, तो उनके लिए किचन के माध्यम से डेली बच्चों को खाना वो दे रहे थे। उसके साथ हमने अलग सभी संस्था के साथ जो भी जुड़े हैं उनको एक नेटवर्क दिया है। जो भी बच्चा आपके पास आता है तो डायरेक्टली CWC के माध्यम से टेम्परेरी कुछ हेल्प दे सकते हैं, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। और जो चीज चाइल्ड लाइन है या अलग अलग NGO है, उसके माध्यम से भी हमने कोशिश की कि जो भी बच्चे स्ट्रीट पे है तो बच्चों को भी खाना मिल सके। और पूना में एक अच्छा काम हुआ है कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में है, अलग अलग एरिया में टेम्परेरी शेल्टर ओपन किए हैं, तो वहाँ पे भी अगर कुछ नीड होता है या जैसे बेगिंग में बच्चे हैं तो भी बच्चे वहाँ पे शेल्टर के लिए जाते हैं। और बहुत सारे डोनर्स हमारे पास मिले जिनके माध्यम से हमने कम्युनिटी को, उनके फैमिली को रेशन दिया है, 2 महीने का 3 महीने का राशन दिया है, ताकि वो बच्चे वहाँ पे अच्छी तरह सर्वाइव कर सकें। बहुत अच्छा। दिस इज तो जैसे आपने सब लोगों ने सुना, कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, सिचुएशन ऐसी है, इट कॉल्स फॉर दीज टाइप्स ऑफ मेजर्स एंड वी आर सीइंग सम ऑफ द वेरी गुड प्रैक्टिसेस दैट आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। मैं प्रीति जी से पूछूंगा, प्रीति जी, ये जो वनरेबल चिल्ड्रन हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ऑन एन ऑनगोइंग एंड सिस्टमैटिक बेसिस आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए? Thank you for asking this very important question. पहले तो मैं बहुत सहमत हूँ चौबे जी से कि और जो आप भी कह रहे हैं विपुल जी कि हमें एक जो प्लान बनाएंगे वो एक लॉन्ग टर्म प्लान होना है और एक सस्टेनेबल इंटरवेंशन होना है। और उसी के साथ मुझे पता है विपुल जी, हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी बात कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार को बजटरी प्रोविजन भी करना है। फिलहाल हम स्क्रेप कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज और वो खत्म हो जाने वाले हैं। और कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान अगर सस्टेनेबल बनाना है तो उसके लिए बजटरी प्रोविजन होना जरूरी है। उसी के साथ एक मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच होना जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं फिलहाल कि चाइल्ड राइट्स वाले ही चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर हमें लग रहा है ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आउटरीच इन द सेंस जो हेल्थ पर काम कर रहा है, जो फूड सिक्योरिटी इशू को लेकर काम कर रहा है, जो वाटरशेड मैनेजमेंट को लेकर काम कर रहा है, जो हाउसिंग को लेकर काम कर रहा है, वहां पे हमारा आउटरीच नहीं हो रहा है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन आपकी भी जवाबदारी है। इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी only of those NGOs or those people, those stakeholders जिनका फुल टाइम मैंडेट है चाइल्ड राइट्स का।
फिर उसी को जोड़ के मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा आउटरीच थोड़ा बढ़ना जरूरी है, हमें इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन करना है, मगर एवरी टाइम मैं जब कहती हूँ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन होना है, मुझे लगता है कि उसी के साथ हमें असिस्टेंस प्रोग्राम से भी लिंकेज करके देना है, वरना हम इंफॉर्मेशन देंगे, एक बच्चा डिस्क्लोजर करेगा और उसको फॉरवर्ड लिंकेजेस है ही नहीं, सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं, और वो अगर नहीं होगा देन देयर आर हाई चांसेस कि डिस्क्लोजर के बाद द चाइल्ड माइट एक्सपीरियंस बैकलैश। तो हमें ये एक पूरा 360 डिग्री अप्रोच लेकर आउटरीच, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एंड लिंकिंग children, families and communities with child protection services, ये साथ में कहीं ना कहीं अगर हो सकेगा तो जल्दी से जल्दी करना है। शॉर्ट टर्म के लिए आई थिंक ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे चिल्ड्रंस होम का एक मॉड्यूल है, एक मॉडल है, वहां से हमें थोड़ा हटके ना कम्युनिटी बेस्ड ओपन शेल्टर को ज्यादा महत्व देना है और उसको ज्यादा प्रोत्साहन देना है, सपोर्ट देना है। मैडम भी गोवा से उनका अनुभव रहा, एंड आई एम ऑल फॉर ऑल्टरनेटिव केयर कि हम फैमिली स्ट्रेंथनिंग कैसे कर सकेंगे, हम किस प्रकार से बाकी के सुविधा बच्चों को और फैमिली को दे सकेंगे जिसको लेकर बच्चा फैमिली में ही सुरक्षित रहे। और एक चीज जो हमने नहीं एक्सप्लोर की है और मुझे लगता है आगे बढ़ते हुए हमें बात करना है, वो है विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज एंड वार्ड लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज। हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वार्ड लेवल और ग्राम पंचायत में, कहीं ना कहीं इट इज टाइम वी स्टार्ट इन्वॉल्विंग देम एंड टेलिंग देम चाइल्ड प्रोटेक्शन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। वो अभी तक ना सिटीज में मेरा ज्यादा अनुभव है, and I don't find corporators thinking that is their responsibility. Prevention is their responsibility. Protection of children's rights violation is their responsibility. I will just end with an amazing recent outreach जो CWC ने किया। बम्बई में CWC को समझा कि रेड लाइट एरिया में काफी प्रॉब्लम्स है, औरतों का धंधा नहीं हो रहा है, इनकम बंद हुआ है, तो CWC वार्ड लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी और NGOs ने मिलकर, एंड दिस वाज ऑफ कोर्स कमेंडेबल वर्क ऑफ CWC, जैसे चौबे सर करते हैं ना, वे कॉन्स्टेंटली आरएम के साथ मिलकर आउटरीच करते हैं, उसी तरह CWC ने अभी रेड लाइट एरिया में ऑलमोस्ट 3 आउटरीच मीटिंग्स किए हैं, telling the mothers about the existing child protection system, and the whole focus is कि violation होने के पहले let us try and prevent the child with this understanding कि एक बार बच्चा violence experience करता है, healing process, mental health जो damage होता है, वो recovery is not only expensive but very very difficult for the child. तो कहीं ना कहीं ज्यादा emphasis also on prevention, हमको use pandemic as a good reason, a good opportunity to strengthen it, and महाराष्ट्र में बहुत अच्छा initiative हुआ, all stakeholders मिलकर किया है to prevent girls, almost 214 child marriages prevent किए गए। I think we should study कि collaboration कैसे रहा, what was the strength of this collaboration that they could protect so many children. तो थोड़ा सा wherever things have been successful and wherever things have not worked, study it and see what worked here and what didn't work there. Thank you very much. Thank you प्रीति जी। दीपेश, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल। सो ये जो आउट ऑफ जो सिस्टम के बाहर बच्चे, इनके लिए हम लोग बात हमेशा करते हैं। सो पहला सवाल ये है कि क्या ये प्रोविजंस हमारे पास पहले से थे या अभी हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ICPS शुरू से बोलता आ रहा है कि हम लोग स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन प्लान बनाए, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन प्लान बनाए, ब्लॉक लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन प्लान बनाए, विलेज लेवल पे बनाए, इनको स्ट्रेंथन करें।
सो क्या हमारा प्रेजेंट सिस्टम इन चीजों के एम्फेसाइज कर पा रहा है? आई डोंट थिंक सो कि हम लोग उन पे एम्फेसाइज कर पा रहे। जिस तरह से जेजे एक्ट के साथ पहले हुआ था, सेम थिंग अभी हो रही है कि जेजे एक्ट 2000 में बना था, लेकिन हम उसके अवेयरनेस, उसके सेंसिटाइजेशन की बातें 2014 के अंदर करते थे। सो चाइल्ड प्रोटेक्शन प्लान को लेकर, आईसीपीएस स्कीम को लेकर सारी बातें हमने कर ली, लेकिन इनको स्ट्रेंथन करने की बातें हम नहीं कर पा रहे। तो जिस तरह से चौबे जी ने, प्रीति जी ने बोला है कि ये जो कन्वर्जेंस है, इस कन्वर्जेंस को हम लोग कैसे बेहतर कर सके, इसके ऊपर हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यस, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, अगर ब्लॉक लेवल एंड विलेज लेवल इज द फर्स्ट एग्जिट पॉइंट जहां से बच्चा सिस्टम से बाहर जाता है। अगर हम उस एग्जिट पॉइंट को ही सिस्टम स्ट्रेंथन कर लेंगे तो शायद हम काम कर पाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन दैट हाउ टू डू इट। सो अगर आप देखें कम्युनिटी लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन अगर कोई होता है कॉर्पोरेट से भी पहले, तो वो होती है एक आंगनवाड़ी वर्कर। उस आंगनवाड़ी वर्कर को जब तक आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे विद रिस्पेक्टिव नॉलेज, रिस्पेक्टिव स्किल्स के साथ, और उसको उस पूरे मैकेनिज्म की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, ताकि कि वो बेहतर तरीके से चीजों को एड्रेस कर सके या चीजों को बेहतर तरीके से ओरिएंट कर सके या रिपोर्ट कर सके, तब तक ये सिस्टम इतना ज्यादा बेहतर काम नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट के बहुत सारे मैकेनिज्म बने, लाडो अभियान से लेकर चाइल्ड मैरिज को रोकने को लेकर, सारी चीजों में अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती वो होती है आंगनवाड़ी वर्कर। सो आई टेक दिस एज अपॉर्चुनिटी कि लास्ट ईयर CSA कैटलिस्ट फॉर सोशल एक्शन ने इस चीज को करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया, और हमने मध्य प्रदेश के इंदौर डिवीजन के अंदर एक छोटा सा एक्सरसाइज करा। इस एक्सरसाइज को हमने वल्नरेबिलिटी मैपिंग दिया, और वल्नरेबिलिटी मैपिंग नाम के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो था वो कोशिश करी कि जो फ्रंट लाइन वर्कर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है आंगनवाड़ी वर्कर, उसको कैसे सही नॉलेज के साथ, सही स्किल के साथ स्ट्रेंथन करें। सो वी डिड समवेयर 8 से 10 हजार आंगनवाड़ी वर्कर की हमने पूरे एक साल के अंदर एक्सटेंसिवली ट्रेनिंग करी, उनको सारी चीजों के बारे में अवेयर कराया, और उनसे ये रिक्वेस्ट करी गई कि आप आपके पर्टिकुलर एरिया में जहां पर कोई बच्चा वनरेबल सिचुएशन में दैट यू आइडेंटिफाई, प्लीज ट्राई टू रिपोर्ट अस। सो आप इमेजिन नहीं करेंगे, सिर्फ इंदौर, धार, बड़वानी एंड खंडवा, इन 4 डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास अप्रॉक्स 2000 प्लस फॉर्म्स आए जो चिल्ड्रन वनरेबल थे। ये वो फर्स्ट फेज के थे जिन्होंने बताया। सो आई थिंक कि हमें ये जो कन्वर्जेंस की हम बात कर रहे हैं, कन्वर्जेंस के अंदर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देकर उनके नॉलेज बिल्डिंग, उनकी स्किल बिल्डिंग के लिए काम करना पड़ेगा शायद। और साथ में जो प्रीति जी ने बोला कि वो इशू, वो जो मुद्दा चाइल्ड प्रोटेक्शन सिर्फ मेरा या आपका नहीं है, ये सबका मुद्दा है। इसके लिए हमें उनके साथ वो थॉट प्रोसेस जनरेट करनी पड़ेगी, और आई वांट कि वो सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आए, तब जाकर ये शायद एक्सरसाइज जो हमने यहाँ पर छोटे पैमाने पे करी थी वो बड़े लेवल पे अपना काम कर पाएगी। थैंक यू विपुल। हाँ, कृपा जी आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। यस, इसी में मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, जो प्रीति जी ने भी बोला और दीपेश जी भी बोल रहे हैं। देखिए, CWC में जनरली ये कहते हैं कि CNCP बच्चों पे काम करना है। 214 जेजे एक्ट की धारा 214 में जो कैटेगराइजेशन है उसी में आपको काम करना है। कई बार जब आप स्ट्रीट पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बच्चा जो माँ बाप के साथ रह रहा है वो CNCP नहीं है, इट डजंट फॉल इनटू द क्राइटेरिया ऑफ CWC। तो वहाँ पे हम लोग अक्सर ये प्रयास करते हैं कि ओके fine, it doesn't fall into the category of CNCP, but looking into the circumstances, the child comes into the vulnerable category. और वहाँ पे जो प्रीति जी ने मेंशन किया वेरी राइटली, और दीपेश भी मेंशन कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स माई सेल्फ आई एम ऑल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन, कि वहाँ पे एक पूरा मतलब सबको मिलकर के एक समेकित प्रयास करने की आवश्यकता है विद ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, नॉट ओनली CWC, नॉट ओनली WCD, बट द सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, यू नो, लोकल अथॉरिटीज, अदर पीपल। और जब सब लोग ये एक साथ समग्रता के साथ काम करेंगे तब जाके जो वल्नरेबल बच्चे हैं जिसकी हम मैपिंग कर पाएंगे और उनके साथ काम कर पाएंगे। तो आई थिंक सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा इसमें। आई थिंक कि ये तो एक कम्युनिटी स्ट्रेंथनिंग है, कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चा जो है किसी भी फैमिली का
जो प्रॉब्लम है वो कैसे वो प्रॉब्लम हल हो सकती है, प्रॉब्लम टेम्पररी हो सकती है, लॉन्ग टर्म हो सकती है, उसको कैसे हल करनी, और बच्चे जो हैं वो अपना न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, उनके राइट्स हैं, उनको वो कैसे राइट्स मिले, वो जो कन्वर्जेंस है, आई थिंक इट इज द कॉमन थीम। ये जो रोल ऑफ ये जो इसको अगर हम देखें कि ये कैसे करें, इट विल रिक्वायर अ वेरी इंटीग्रेटेड अप्रोच, क्योंकि इसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन तो है नहीं। ये नहीं है कि हम बच्चों को थोड़ा सा कुछ करें और उसका सोल्यूशन निकलेगा। वी विल हैव टू लुक एट द एंटायर फैमिली एंड द कम्युनिटी टू सी हाउ वी कैन प्रोवाइड इट। लेकिन मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को छोड़ के थोड़ा आगे चलता हूँ कि इस पैंडेमिक में कई जगह सुनने में आया है कि अथॉरिटीज ने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को बोला कि आप बच्चों को वापस भेजो। ठीक है, nearly 70,000 children out of 4 lakh children in the country were sent home in a hurry. जो पहले हमारा वेबिनार हुआ था उसमें कुछ CCIs के ट्रस्टीज थे, उन्होंने भी इसके बारे में शेयर किया कि हमको एकदम ऑर्डर मिले कि आप बच्चों को भेजो, और हमको टाइम नहीं मिला कि हम देख सकें कि भाई बच्चा के जो सर्कमस्टांसेस जहाँ हम वापस भेज रहे हैं वो सेफ हैं, कैसे हम उनके साथ कांटेक्ट करें, कैसे केयर करें, राइट। एंड इन फैक्ट कि बच्चा वुड हैव बीन सेफर एंड प्रॉब्ली बेटर प्रोटेक्टेड इन द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। तो ये जो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, ठीक है, ये तो सब मानते हैं कि अगर बच्चा फैमिली के साथ रिहैबिलिटेट हो सकता है तो बहुत सबसे अच्छा है। वो तो सबके सब, हम सब लोग जो इस स्पेस में करते हैं वो मानते हैं। लेकिन ये जो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, जो थोड़ा सा जल्दी में हो या थोड़ा सा क्योंकि टारगेट बने हैं कि चलो अभी डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना चाहिए हर साल, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये हाउ डू वी मेक श्योर कि जो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा है इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। हाउ कैन वी मेक श्योर कि दिस इज डन आफ्टर अ प्रॉपर सोशल इन्वेस्टिगेशन एंड with proper sponsorship or rehabilitation of the family and the child post deinstitutionalization। तो मैं थोड़ा सा इस मुद्दे पे थोड़ी चर्चा करते हैं। तो हाँ परम जी, आप हाँ सर, डी इंस्टॉलेशन जो पूना और महाराष्ट्र में जैसे कि लॉकडाउन शुरू हुआ तभी से हमने एक कमिश्नर साहब ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि CWC को कि कोई भी बच्चा संस्था के बाहर ना जाए, क्योंकि जब तक ये कोविड का पेंडेमिक खत्म नहीं होगा तब तक बच्चे संस्था में रहेंगे। और हमने CWC को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि कोई भी बच्चा बाहर ना जाए और बच्चों के केयर प्लान और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए प्रॉपर जब तक SIR नहीं आएगा या प्रॉपर उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा और वो सेफ है ऐसा जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम बच्चे नहीं भेजेंगे। इसके दौरान बहुत सारे पेरेंट्स DCPO के पास आए, हमारा बच्चा दे दो, हमको बाहर जाना, यहाँ पे रहना नहीं है, ऐसे भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आए थे। तो हमने क्या बोला कि अगर आप जिस जिला में जा रहे हो वहां का हमको डिटेल्स दे दो, हम यहाँ से उस संस्था में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन बच्चा आपके पास डायरेक्टली हैंड ओवर नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा जहाँ पे है वहां पे सुरक्षित है और सुरक्षित रहना चाहिए। ये हमने कोशिश की कि बच्चा कोई भी बाहर नहीं रहे और बच्चों को देखभाल प्रॉपर हो जाए। बहुत और दूसरी बात ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो भी CCIs है, CCI को भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर बच्चा कोई आता है बाहर से तो उसको आइसोलेट करो, संस्था में रखो अलग सेपरेट, लेकिन बच्चे को बाहर जाना है तो कंसर्न अथॉरिटी से प्रॉपर परमिशन लेके बच्चे को पेरेंट्स के पास हैंड ओवर करना है। तो इसकी वजह से पेंडेमिक की सिचुएशन में कोई भी बच्चा हमारा बाहर नहीं गया। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमने 3 संस्था सिलेक्ट किया है, उसी में बच्चे रहेंगे जो भी नए बच्चे आते हैं। तो बच्चों का बाहर से जो आते हैं उनका कोविड का असर दूसरे बच्चों पर ना हो जाए
और दूसरा 14 दिन क्वारंटाइन रखने के बाद नॉर्मल बच्चों में हमने उनको मिक्स कर दिया। तो ये सारे प्रैक्टिस पुनः महाराष्ट्र में हुआ है। थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहे इसके बारे में? सुषमा जी, आप कुछ बोलेंगी? एक्चुअली आपने बोला कि डी इंस्टॉलेशन जो करना पड़ा, लेकिन गोवा में ऐसा नहीं हुआ सर, क्योंकि डी इंस्टॉलेशन हमने नहीं अलाउड किया, बिकॉज आफ्टर द लॉकडाउन इट स्टार्टेड, I personally, as a chairperson of the commission, I created a virtual WhatsApp group where I included all the CCIs in charge, as well as the police authorities and other stakeholders and NGOs. And I started monitoring that along with my other members, as well as directors of the DWCDs were there. And even the National Commission was also taken an initiative. In the meantime, what the Preeti ji said, that a Supreme Court decision came, that a 4 of 2, writ petition 4 of 2020. In that, we found that the Supreme Court has given a direct directions and guidelines how to behave with the children, how to allow the children to stay in a CCI, what are the precautionary measures to be taken. So in that all of the process, whole of the process, we have found that the CCIs have maintained a decorum and they are not allowed to move out of the after the removal of the lockdown phase-wise. And if it was found by the CCI in charge as well as by the CWC that yes, the child will be safe with the family and will not be more traumatized, and the family is able to take care, because what I said at the earlier, that mostly these are the laborers or the children of the migrant laborers who both of them are coming down to Goa or either of them, and they are having their own houses in the native places. So it was found if the CWCs or by the other stakeholders and NGOs and the CCI in charge, that child will be safe and it will be more safe in the family instead of making it more traumatized in the CCI because of restricted movement, then only the children were allowed to go home. Otherwise, no, because NCPCR also had taken an initiative in that. So registration was not taken place in Goa as such. I have found only if the parents are able to take care, then only they were allowed to go. Very nice. Yeah. चौबे जी, आप कुछ शेयर करेंगे? प्रीति जी शेयर कर लें, फिर मैं करता हूँ। हाँ, प्रीति जी कर लें पहले। प्रीति जी, अच्छा, ओके, थैंक यू। सी, इसमें मैं दो फेजेस में बात करना चाहूंगा। जो आपका पहला प्रश्न था कि डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, तो ये आई थिंक जो है स्टेट वर्सेस स्टेट रहा होगा, किसी स्टेट में हुआ होगा। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं था। इवन सभी CWC ने मोर और लेस एक ऑर्डर इशू किया था कि नॉट अ सिंगल पर्सन विल अलाउ द एंट्री इनटू द CCI। वो बोर्ड पे लगाया हुआ था, बाहर CWC के नंबर है उसके साथ। इवन जो राशन वाला और बाकी लोग भी आते थे तो उनको पहले बात करके प्रॉपर जो मेजर्स थे वो लेने के बाद किया जाता था। तो बच्चों को हमने इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे काम नहीं किया है। तो बच्चे सेफ थे हमारे हिसाब से। बच्चे इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा सेफ थे, ज्यादा देन ट्रांजिट ले जाना उसमें। तो सेकेंड पार्ट जो आपने बोला था कि अगर फैमिली में गया है, हाउ टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द फैमिली, उसमें जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं हमारे पास, उसमें हम SIR करते हैं रेगुलर बेसिस पे विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड लाइन एंड विद द हेल्प ऑफ DCPU ऑल्सो। जो दो एजेंसीज हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके माध्यम से हम फैमिली का पूरा स्टेटस स्टडी कर सकते हैं। तो अगर बच्चे को दिया भी गया है तो प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ कि फैमिली में जाने के बाद उस बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मे बी वीकली बेसिस और फोर्टनाइटली बेसिस डिपेंडिंग अपॉन दी वर्कलोड ऑन चाइल्ड लाइन एज वेल एज DCPU। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग पूरे टाइम होती रही है जो इन बच्चों को भी फैमिली में रिहेबिलिटेट किया गया। बट लार्जली इस दौरान हमने बहुत कम बच्चे, 1 या 2 बच्चे किए हैं, शायद वो भी नहीं किया है। वी हैव डिसअलाउड। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमने ये किया कि अगर पेरेंट्स से बात करनी है बच्चे को, तो आप सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए आइदर व्हाट्सएप और जूम या जो भी एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बच्चे की डेली बात कराइए, सिर्फ फैमिलीज में बात कराइए। बट फैमिलीज में हमने नहीं दिया है, और अगर दिया है तो रेगुलर SIR के माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग की है। जी प्रीति जी, आप कुछ? मैं सिर्फ परम ने जो कहा उसमें ऐड करना चाहती हूँ, ताकि कहीं कोई ऑडियंस में, पार्टिसिपेंट्स में गैरफहमी ना हो। यस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जैसे बाकी राज्यों में हुआ, पहले 2 महीने, करीब 3 महीने ये कहा कि बच्चे शेल्टर होम्स में ही रहने दो, मगर अनलॉक प्रक्रिया में अभी बच्चों का रेस्टोरेशन चालू हो गया है और बहुत सिस्टमैटिकली CWC DCPU से
SIR करके, पेरेंट्स के साथ बात करके, ICPs देखकर, काउंसलर का रिपोर्ट देखकर, एंड सबसे महत्व का ये है कि ये भी देखती है कि फैमिली के आसपास या फैमिली में किसी को इस समय रेस्टोरेशन के समय कोविड तो नहीं है ना, ये सब देखकर। और एक जो बहुत अच्छा चीज हुआ है ड्यूरिंग द अनलॉक फेज, वो है CWC हैज नाउ स्टार्टेड यूजिंग जो कलम था फॉलो अप का, वो कलम अभी पहले मैं बिफोर द लॉकडाउन, बिफोर द पैंडेमिक, वो बहुत कम CWCs इस्तेमाल करते थे। अभी आई थिंक इतना रेगुलरली उनके ऑर्डर में फॉलो अप होता है, आइदर NGO को देते हैं, चाइल्ड लाइन को देते हैं, या DCPU को देते हैं फॉर 1 year फॉलो अप एंड एंश्योर की फॉलो अप रिपोर्ट उस टेम्पलेट में आता है। एंड they've gone to such an extent कि एक हाल ही में एक जुरिस्डिक्शन में एक 18 साल के ऊपर वाली बच्ची को रेस्टोर किया गया और उसका भी फॉलो अप दिया गया। तो आफ्टर 1 month उस लड़की ने बोला मुझे आई डोंट वांट यू ऑल टू फॉलो अप, क्योंकि आप आते हो वो पूछते मुझे क्यों मेरे घर में लोग आ रहे हैं। तो हमने कहा फिर हमने यानी जो फॉलो अप कर रहा था उसने कहा फिर क्या करें। शी सेड आई विल गिव अ लेटर टू यू, वो लेटर आप CWC को दो कि मैं एक अडल्ट हूँ, मेरा एजेंसी है, आप मेरा स्पेस वायलेट नहीं कर सकते, तो ये लेटर CWC को देना। इफ आई नीड हेल्प एनीवे CWC इज नो मोर माय जुरिस्डिक्शन, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, मगर आई डोंट वांट टू फॉलो अप। तो ये भी एक एक्सपीरियंस रहा, मगर ये भी अनुभव रहा है। तो I think there are positive mechanisms within the Juvenile Justice Act जो हम रिवोक कर सकते, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं to ensure family strengthening, to ensure follow up. And जैसे सुषमा जी and everybody's been saying, Deepesh has been saying, this whole issue of convergence, this whole issue of multi-sectorial approach, the whole issue of trying out passing an order for alternative care, trying out and passing an order for follow up to a Gram Panchayat person saying, I want you also to look into this case. ये थोड़ा innovation, I think pandemic के वजह से हो रहा है. We only need to, see इसका results positive आ रहा है कि नहीं, आ रहा होगा तो scale up हम कैसे करें. Thank you. It is so nice to hear from all of you, and I must actually commend and congratulate the people that we have on the panel for some of these very good practices that you are following, because they are in the best interest of the child. Kyunki hame, and I think it's not by chance, because you have been called here because you have done something new and are considered leaders in this space. लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि these practices are not being followed in a uniform manner across the country. There are many places where shrug off the responsibility. कि जब वो बच्चा होता है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अगर वो बाहर हुआ तो फिर मैं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरा. ठीक है, तो इसके कारण मैं इतना बताऊं कि बहुत सारे बच्चे डी इंस्टीट्यूशनलाइज हुए हैं जल्दी में, राइट, बिना सोच के कि वो कहाँ जा रहे हैं, उन बच्चों की क्या कंडीशंस है, क्या बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड है. प्रीति जी, जैसे आपने कहा पहले फॉलो अप जो था वो नहीं होता था, क्यों अभी जो है हम सब लोग लर्न कर रहे हैं कि फॉलो अप हम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे. थोड़ा सोच बदल गई है, लेकिन हमने देखा है कि हमने एक स्टडी किया था जहां फॉलो अप का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है वो क्लियर नहीं है. एक्सपेक्टेशन है कि भाई चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट फॉलो अप करे, लेकिन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, हर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट के पास कहाँ रिसोर्सेज हैं कि वो जाके विलेज में, कहीं दूर जगह, कहीं टाउन में जाके फॉलो अप करे. CWCs के पास कहाँ रिसोर्सेज हैं कि वो प्रॉपर सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहाँ कराए. वो कौन से ट्रेन्ड लोग हैं जो SIR कर सकते हैं. तो आई थिंक ये जो मुद्दा है ये कि
बच्चा जो है इंस्टीट्यूशन में रहे, बाहर रहे, that is not the issue. We have to look at only one thing, what is in the best interest of the child, and whether or not we have the mechanism to ensure that. जो responsibility है कि वो child rights मिले उस बच्चे को, वो हमारी responsibility है. तो चलिए इसमें इस टॉपिक के थोड़ा आगे चलते हैं. So let's now turn to children in the CCI. थोड़ा सा पहले बात हुआ कि भाई बच्चों का मेंटल स्ट्रेस है, दे आर कूप्ड अप, उनका एजुकेशन, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. तो अभी तो ऐसा लगता है कि ये स्कूल जो खुलेंगे शायद काफी कुछ टाइम आगे लगेगा, शायद 6 महीने, पूरा सेशन पता नहीं कब स्कूल खुलने वाला है. तो इस समय जो ये बच्चे हैं उनके लिए क्या हम अलग कर सकते हैं ताकि उनका जो मेंटल स्ट्रेस है, जो उनका एजुकेशन है, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है, वो लूज नहीं हो. तो मैं दीपेश तुमसे शुरू करूंगा. थोड़ा सा आप बताएंगे कि किस तरह हमने सोचा और कैसे हमने इस पैंडेमिक से हमने क्या ट्राई किया और क्या उसका कुछ नतीजा निकला. बिल्कुल सर. सो वैसे तो जैसे प्रीति जी ने इनिशियली, परम जी ने और सभी लोगों ने बताया कि जब पैंडेमिक शुरू हुआ था तो सब लोगों ने अलग अलग मेजर्स लेना शुरू करे. सो वैसे ही हम लोग भी, चूंकि CSA बहुत सारी CCIs के साथ काम कर रहा है, क्रॉस 100 CCIs के साथ काम कर रहा है. सो हमारे पास इन सब बच्चों का कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थी कि इनको हम इस पैंडेमिक के ड्यूरेशन में क्वालिटेटिव वे में हम लोग इनको एंगेज कर सके, प्रेजेंट उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन दे सके. सो इसी के लिए डिफरेंट थॉट्स आना शुरू हुए. सबसे पहले तो हम लोगों ने ये तय करा कि जो हमारे स्टाफ है वो बच्चों के साथ रेगुलर बात करेगा, उनके साथ जूम कॉल पे और कहीं ना कहीं एंगेज करेगा. लेकिन शायद वो इतना इनफ नहीं था कि उसको कैसे करें. तो उसको चैनलाइज्ड वे में, एक प्रॉपर वे के अंदर कैसे काम करा जाए, इसके लिए हमने अपना एक प्रोग्राम डिजाइन करा जिसको बोलते हैं हम डिजिटल एंगेजमेंट प्रोग्राम. ये पूरा वर्चुअल वर्ल्ड का प्रोग्राम है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम हमने जब शुरुआत करी थी तो ऐसा लग रहा था कि हम 1 या 2 महीने हम इसे करेंगे, लेकिन आज की तारीख में उसकी जरूरत ऐसी हो गई है कि अब हम शायद उसे अक्रॉस द ईयर करेंगे और आगे भी उसको कंटिन्यू करेंगे. सो इस डिजिटल एंगेजमेंट प्रोग्राम में जब पहला डिस्कशन निकल कर आया, सो ये निकल के आया कि बच्चों को किस तरीके से और किन चीजों के ऊपर हम लोग ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं. तो पहला था उनका रिक्वायरमेंट कि उनको इस पैंडेमिक ड्यूरेशन के अंदर कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज प्रोवाइड करी जाए, क्योंकि वो समर वेकेशन का भी टाइम था, ताकि वो कुछ चीजें सीख सके. तो ये पहला पॉइंट था. दूसरा, बार बार हम सब लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, काउंसलिंग सर्विसेज से लेकर अलग अलग बातों को लेकर. तो दूसरा पिलर हमारा था वो मेंटल हेल्थ था. तीसरा जो पिलर निकल कर आया वो था हमारा एजुकेशन को लेकर, कि एजुकेशन भी उनका किस तरीके से कंटिन्यू कर सके, कहाँ उनको बेसिक लर्निंग्स प्रोवाइड कर सके ताकि वो अपने सिलेबस या इन सारी चीजों के साथ पीछे ना रह जाए और उसको कंटिन्यू कर सके. एंड देन फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट पिलर वाज दैट प्रिपरेटरी प्रोग्राम. जो 17+ बच्चे हैं जिनको पता था कि अभी हम कुछ दिनों बाद इस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन सिस्टम के साथ बाहर जाने वाले हैं और उस सिस्टम के अंदर से बाहर निकल के हमें सोसाइटी के अंदर किस तरीके से रहना है, तो उसकी जो प्रिपरेशन थी. तो ये 4 चीजों के ऊपर हम लोगों ने हमारा एक प्रोग्राम डिजाइन करा जिसको बोलते हैं डिजिटल एंगेजमेंट प्रोग्राम. और इस पूरे प्रोग्राम के अंदर पर डे की बेसिस पे CCIs के अंदर 3 से 4 घंटे का एंगेजमेंट करा और उन बच्चों को अलग अलग मॉड्यूल के बेसिस पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करे. उसके काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल कर भी आए हैं और अभी हम लोग इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करने का सोच भी रहे हैं. ओवर टू यू विपुल. तो ये जो मैं थोड़ा सा इसके बारे में और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये काफी कुछ रेप्लिकेट हो सकता है और कोविड के बाद के कारण ही नहीं, इसके बाद भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. तो अगर आप ये समझें कि एक संस्था में एक स्मार्ट टीवी हो, इंटरनेट कनेक्टेड हो, ताकि उस स्मार्ट टीवी पे
जो वीडियोस हैं, यूट्यूब है, जूम है, वो सब कर सकें। और अगर हम ये सोचें कि हर संस्था में एक कंप्यूटर लैब बनाई जाए, जिसमें अगर 50 बच्चे हैं तो कम से कम 6 या 7 कंप्यूटर हों, और वो भी इंटरनेट पे कनेक्टेड हों, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका अगर आप कॉस्टिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं निकलता, ठीक है। और अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए तब आप ये समझिए कि जो यूट्यूब है, जो इतने अदर एजुकेशनल लर्निंग है, इतना बढ़िया कंटेंट है, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग क्लासेस के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए, वो सब कंटेंट बच्चों को मिल सकता है। दूसरी बात, हमने ये देखा है कि अगर कोई जैसे डांस इंस्ट्रक्टर है, वो अपनी को क्लास ले सकता है बच्चों की, कहीं भी वो इंस्टीट्यूशन हो। पहले हमेशा ये लिमिटेशन रहा करती थी कि जो संस्था सिटीज में नहीं है, जो छोटी छोटी जगह में है, उनके पास कौन से इंस्ट्रक्टर्स हैं, कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन अगर अभी हम ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में सोचें तो फिर वो लिमिटेशन नहीं रहती। और थर्ड, जो इंटरैक्शन है, जो हमने मैं आपको बताऊं, हमने ट्राई किया कि एक संस्था के बच्चे और दूसरी संस्था के बच्चे एक दूसरे से इंटरैक्ट करें। हमने ये ट्राई किया कि कुछ बच्चे जो इधर बॉम्बे में इंटरनेशनल स्कूल्स में जाते हैं वो बात करें और इंटरैक्ट करें कुछ बच्चे जो संस्था में रह रहे हैं। तो इस तरह हम जो ये डिजिटल, आई थिंक ये जो पेंडेमिक में हम जैसे अभी बात कर रहे हैं, कभी पहले पॉसिबल नहीं सोच सकते थे। तो इसी तरह हम जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इससे बहुत ही अपॉर्चुनिटी है कि हम बच्चों को डेवलपमेंट, उनका जो डेवलपमेंट है उसके लिए हम इनपुट्स दे पाए, और वो जो इनपुट्स दे पाए वो कस्टमाइज्ड हो। हम ये भी जानते हैं कि अगर 50 बच्चे हैं तो उनका जो लेवल है, क्योंकि शायद कुछ ऐसे हों जो स्कूल कभी पहले गए ही नहीं, उनको रेमेडियल एजुकेशन चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले स्कूल गए हैं और स्कूल में अच्छा है, उनको कोचिंग चाहिए ताकि वो क्लास 10, क्लास 12 कर सके, कुछ और कर सके। तो ये जो है, मैं आप लोग सब लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि हम अपने आप CSA में ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया और इसका जो रिस्पांस हमने देखा, जो इसका हमने इम्पैक्ट देखा, हम अपने आप ही बहुत बहुत उत्साहित हुए कि ये जो है रेप्लिकेट करना चाहिए, और बहुत ही नया तरीका है टू रीच आउट टू दीस चिल्ड्रन। तो ये तो हुआ चाइल्ड, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का। कोई कुछ और शेयर करना चाहेगा, कोई समथिंग इनोवेटिव? हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो फिर मैं कहूँगा ब्रीफ में। सर, हाँ परम बात करना, चौबे जी बोलिए। परम बात करना। हाँ परम। सर, अभी केयर फॉर यू बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के टैलेंट हंट पे काम कर रही थी। तो ये ड्यूरिंग लॉकडाउन फर्स्ट राउंड जो हुआ सिंगिंग कंपटीशन है, उसमें 11 बच्चे हमारे CCI के क्वालिफाइड हो गए। जब सेकंड राउंड भी वो प्रैक्टिस किया टैलेंट हंट का, उसमें से 8 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं सेकंड राउंड के लिए टैलेंट हंट सिंगिंग कंपटीशन में। उसके साथ उसके साथ हमने CCI में जो गवर्नमेंट होम है वहाँ पे डोनेशन में टीवी और उसका जो भी इंटरनेट कनेक्शन का भी हमने प्रावधान किया ताकि बच्चे अलग अलग एंगेज हो सके अलग अलग एक्टिविटी में। तो ये यहाँ पे पुणे में तो हमने किया है सर। बहुत अच्छा, बहुत वेरी नाइस। ये जो मैं बोलना चाहूंगी हैं वो बच्चों को बड़े मजे आते हैं इन सब चीजों में। हाँ हाँ कृपा जी, आप शायद जी बहुत ब्रीफली बताना चाहूंगा। लॉकडाउन के पहले ही हम लोग साल में 2-3 एक्टिविटीज बच्चों के साथ, जो आपने अभी एक आइडिया दिया है कि एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में हम सोशल मीडिया से बात करा सकते हैं बच्चों का,
तो हम पिछले 2 सालों से लगातार बच्चों के साथ एक पिकनिक, साल में एक पिकनिक, एक उनको मूवी दिखाना और एक कंपटीशन का कार्यक्रम करते थे, ऑफकोर्स फिजिकली लॉकडाउन के पहले। तो कुछ बच्चों ने हमको, जब पहली बार हम उनको जब एक मॉल में, शॉपिंग मॉल में पिक्चर दिखाने ले गए, तो उन्होंने बोला कि सर हम पहली बार इतने बड़े स्क्रीन पे पिक्चर देखने आए हुए हैं। दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद अस। यस, जो अभी आपने आइडिया दिया, विल इम्प्लीमेंटिंग दिस वीक ओनली, कि हम एक संस्था के दूसरे संस्था के बच्चों से बातचीत कराएं, उनका टाइम बहुत अच्छे से निकल जाएगा इसको लेकर के। तो फिजिकली तो हम इसको करते थे, लॉकडाउन में नहीं कर पाए, अब आगे से इसको करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। चलिए, तो अभी थोड़ा सा लेट्स गो ऑन टू द अदर एस्पेक्ट ऑफ आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि बच्चा है, चाहे वो संस्था में उसने टाइम स्पेंड किया है, उसका हमने सब एफर्ट किया है कि वो देखभाल हम ठीक करें। अभी 17 या 18 का एज हो गया है, टाइम हो गया है उसको छोड़ने के लिए। अभी उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो, उसके पास कुछ ऐसे स्किल्स हों, उसका करियर प्लान थोड़ा क्लियर हो, और फिर आगे जैसे वो छोड़ता है तो हम कैसे उसका हैंड होल्डिंग करें ताकि उसको इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए कॉन्फिडेंस मिले, कुछ स्किल्स मिले, और कुछ जॉब और अर्निंग करना शुरू करे, और कैसे उस अर्निंग को अपना ठीक तरह से अपना देखभाल में कैसे करें. So how do we prepare children, right, for the time that they have to leave the institution, and what is the aftercare program that we can provide? मैं इस पे क्यों स्ट्रेस करना चाह रहा हूं, क्योंकि दिस इज द लास्ट माइल, और अगर ये लास्ट माइल में फेलियर हो गया है तो फिर जितनी भी हमने एफर्ट करी है उसका क्या फायदा है ना. तो ये जो लास्ट माइल है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. So who will like to start with this talking about aftercare? परम जी, आप शुरू करिए. और एक मिनट मैं जरा पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहता हूं कि इसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे ऑडियंस से. हम लाइव क्वेश्चंस लेंगे, तो अपना हाथ ऊपर करिए. राइट, यू on the Zoom you have to say I'm raising my hand so that we can get you in live. So please get ready for questions after this round of topic that we will talk. हाँ, परम जी बोल. अभी जो 10th का रिजल्ट आ गया, तो एक बच्चा हमारे यहाँ का आफ्टर के ऑर्फन चिल्ड्रन था CCME का, उसको 89% मिले. तो उसके साथ मैंने खुद जाके इंटरेक्ट किया, कम्युनिकेशन करने के बाद पता चला कि उसका इंटरेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट में है. बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाता है, मूर्ति अच्छी तरह बनाता है, और एजुकेशन में भी अच्छा खासा है. तो उससे जब बात किया तो उसने बोला कि मुझे 12th तक करना है एजुकेशन में, और उसके साथ मुझे GD आर्ट का भी एक्टिविटी करना है. तो इसके माध्यम से हमने पुणे से हमने अलग अलग संस्था से कांटेक्ट किया. उसमें से कोल्हापुर में दळवी आर्ट इंस्टीट्यूट, तो उनसे कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने रेडी हो गए कि उसको हम आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए एडमिशन देंगे. तो यहाँ से CCI से हमने वहाँ के आफ्टर केयर होम में उसको प्लेस किया और उसका एजुकेशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग की है. चलिए, वेरी नाइस. तो उसका और तो परम जी, मेरा एक इसी से, विपुल सॉरी, आई एम सॉरी, एक आपसे ये सवाल है कि ये जो प्रोसेस आपने करी है, ये प्रोसेस आपके इंडिविजुअल एफर्ट्स की वजह थी. तो चूंकि आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से आज यहाँ ट्रांसफर, कल वहाँ ट्रांसफर, ये पॉसिबिलिटीज बनी रहती. तो आप इस प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए कि ये सिस्टम में हमेशा रहे, उसके लिए कुछ करा है आपने, या आप कैसे उसको करने का सोच रहे हैं, वो थोड़ा बताएंगे तो शायद और ज्यादा अच्छा लगेगा. अभी सर हम जो बच्चों का केयर प्लान तो बनाते हैं हर महीने. एक तो ट्रैक चाइल्ड पे भी केयर प्लान होता है, लेकिन हर बच्चे का जो संस्था में काउंसलर है या जो केयर प्लान बनाते हैं, वो हम केयर प्लान को ऑब्जर्वेशन करना है. उसके साथ CWC जो है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अपना, उनके साथ नेटवर्क करके हर बच्चे का प्रॉपर रिहेबिलिटेशन कैसे हो जाए, इसके लिए कोशिश करना है. अभी ये केस में भी हमने CWC का बहुत सारा मदद लिया है. हमारे यहाँ की CWC अच्छी है, उन्होंने बहुत सारा कॉपरेट किया है.
और उसका जो भी रिस्टोरेशन करना है, इसके लिए हमने अलग अलग लोगों से बात भी किया और बच्चे से पहले बात किया कि उसका इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं 10th हो गया चलो उसको 11-12 साइंस करा देंगे या आगे जाके कई संस्था में प्लेस करेंगे, लेकिन उसका इंटरेस्ट भी हमें देखना बहुत जरूरी है। अगर उसको हम उसके इंटरेस्ट नहीं है और हमने उस पर थोपा तो वो आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा। तो तकरीबन मैं बहुत सारे दिनों से काम कर रहा हूँ, तो ज्यादातर मुझे लगता है कि फोकस हम आफ्टर केयर पे करेंगे तो उनके इंटरेस्ट को लेकर हम काम करेंगे। और अलग अलग जैसे कि अभी एमसीडी है या अलग अलग वोकेशनल ट्रेनिंग के जो डिपार्टमेंट है अभी स्किल डेवलपमेंट के, अभी उनका भी चल रहा है, तो उनके साथ अगर नेटवर्क करेंगे सभी सीसीआई में, अगर हम उनको देंगे, एजुकेशन तो एकेडमिकली चलेगा लेकिन स्किल बेस्ड कुछ प्रोग्राम अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ताकि वो बच्चे सीसीआई में रहते हैं, आगे जाके उनको वो फायदा हो जाएगा। वेरी नाइस। चौबे जी आप कुछ थोड़ा बताएंगे मध्य प्रदेश में? आई थिंक इसमें जो हम स्टार्टिंग जो है 18 साल से पहले हमें 12 या 14 साल से इसमें प्लानिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जा करके उसका एक बेहतर रिहेबिलिटेशन हो पाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, 2 मिनट लूंगा। लॉकडाउन में एक बाल काटने की बड़ी समस्या थी, सभी के साथ थी, कॉमनली थी, आप बाहर जा नहीं सकते थे। एक इंस्टीट्यूशन के बच्चे ने बोला चलो मैं बाल काटता हूँ, मुझे उन्होंने बताया, मैंने कहा बिल्कुल आप उसको बाल काटो, और वो पूरे इंस्टीट्यूशन के सभी बच्चों के बाल काट काट के लॉकडाउन में अब वो इस स्थिति में आ गया है कि वो कहता मैं एक सैलून की शॉप खोलने वाला हूँ। See, a small incidents was there which came to us through the institution, तो हमने उस तरह से प्रमोट किया उसको। बच्चे बहुत अच्छा खाना बनाते हैं कुछ बच्चे, हमने उनको उसी पे बोला 12 साल 14 साल से आप छोटा छोटा करिए, काम नहीं कराइए आप, लेकिन खाना बनाने की टेक्निक सिखाइए, खाना बनाने दीजिए। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अच्छा इतना अच्छा खाना बनाते हैं हम अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। ठीक है, ये तो छोटी छोटी चीजें जो इंस्टीट्यूशन से निकल के प्रोफेशनली भी हम लोग कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जो भोपाल में फॉर्चुनेटली होते हैं, सीपेट करके एक इंस्टीट्यूशन है। ऑफ कोर्स दीपेश की हम इसमें मदद लेते हैं, दीपेश हैज बीन हेल्पिंग हैंड फॉर अस आफ्टर केयर प्रोग्राम्स के लिए। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी करके एक इंस्टीट्यूट है जो 10वीं के बाद के जो भी बच्चे होते हैं उनको 6 मंथ का डिप्लोमा कराने के बाद वो एक प्लास्टिक के कैसे फर्नीचर बनते हैं वो सारी चीजें करते हैं। सिर्फ उनका क्राइटेरिया है कि 10वीं पास होना चाहिए बच्चा और एज 18 की होनी चाहिए। तो 6 महीने साल भर में उनको एक अच्छा करने के बाद बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज उस फील्ड में आती है। एक ये है, कुछ टैली सिखाते हैं। अभी जी सॉरी टू इंटरप्ट, मध्य प्रदेश ने लीड लिया है बच्चों को 2000 रुपए महीना। I was coming to that। तो इसके अलावा बच्चों को हम टैली की ट्रेनिंग देते हैं, कहने का मतलब वो वोकेशनल कोर्सेज देते हैं जिनसे वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। सेकेंड चीज, मध्य प्रदेश में 2000 रुपया प्रति बच्चा हर महीने आफ्टर केयर के स्पॉन्सरशिप में बच्चों को मिलता है। जो भी बच्चा 18 साल से ऊपर हो जाता है, और दैट टू द रिकमेंडेशन ऑफ CWC और CCI और DCPU, जो भी उसको फॉलो अप मैकेनिज्म में है उसके रिकमेंडेशन पे हम बच्चों को 2000 रुपए देते हैं जब तक कि वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता। आई थिंक विच इज ठीक है, बहुत अच्छा तो है, लेकिन ऐसा कुछ अमाउंट है जिससे उसकी लाइवलीहुड या उसको अपने एजुकेशन या जो भी वो करना चाहता है उसको करने में सुविधा होती है। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये बिल्कुल पायनियरिंग स्टेप है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। ये डॉक्टर चौबे जी ने और जो मध्य प्रदेश के बहुत प्रोग्रेसिव माइंडेड स्टेप है, क्योंकि ये जो 2000 रुपए महीना छोटा अमाउंट है, लेकिन उस बच्चे को जो 17-18 साल का है उसको बहुत बहुत यूजफुल है। और ये जो कोविड टाइम में, क्योंकि जो हमको जो दीपेश जी ने शेयर किया कि only 30% of them in jobs are receiving their salary, आप समझिए nearly 60% do not have job security। इस circumstance में ये बहुत important है। और मैं तो बल्कि और लोगों से सुन के ये पूछना चाहूँगा कि ये सब जो चीजें हैं गुड प्रैक्टिसेस, इनको कैसे स्केल करें, हाउ डू वी मेक देम इनटू अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस राइट अक्रॉस आवर कंट्री। बिकॉज स्कीम तो है, ऐसा नहीं है कि हम नए स्कीम के लिए मांग रहे हैं,
बट ये जो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे इट बिकम्स अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस अक्रॉस द कंट्री। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स? प्रीति जी? या प्रीति जी आप। You go, Deepesh, go ahead. I can put it in question and answers. Don't worry. Okay. So ये पैनल के अंदर हमारे साथ अभी DCPU है, SCPCRs के मेंबर है और CWC है और CCI भी अगर देखें तो इस तरीके से, और एक पैनल के अंदर एक CCI को सपोर्ट करने वाला एजेंसी भी है। सो जो आफ्टर केयर की हम बात कर रहे हैं, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, रिहैबिलिटेशन के अलग अलग मुद्दे पे बात कर रहे हैं। सो परम जी, मेरा रिक्वेस्ट ये रहता है सारे DCPUs के साथ कि जितने भी आफ्टर केयर के बच्चे दिखते हैं उन लोगों के CCI छोड़ने से पहले एक लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां पर के बच्चों को इनरोल्ड कर सकते हैं हम लोग, जहाँ पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारा एक्सरसाइज हम लोगों को करना चाहिए। DCPUs और CWCs के पास वो लिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए, विच अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज्यादा जगह पर उसको देख नहीं पाया। सो इस पैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि हम हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये प्रैक्टिसेस शुरू कराएं कि लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ बच्चों को रिफर कर सकते वो हम रेडी रखें। सपोर्ट अमाउंट की जो 2000 रुपीज की बात करी गई है, ये कहीं और नहीं जाना, हमारे एक्ट में प्रोविजन है। तो अगर दूसरी जगह पर वो सारी स्टेप्स पहले से डिसाइड हो जाए, पहले से बच्चों का बैंक अकाउंट डिटेल्स, पहले से बच्चों की जो रिकमेंडेशन है, वो सारी चीजें हम स्टार्ट पहले कर लें, तो जिस दिन बच्चा के CCI छोड़ेगा उसके नेक्स्ट मंथ से उसको वो सपोर्ट मिलने लगेगा। तो इस सिस्टम में हम लोग चीजें करा रहे हैं, तो ये एक मेरा बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट था। तीसरा जो है ICP, हम आप सब लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल केयर प्लान हम बनाते हैं, लेकिन अगर आप मेजरली इंडिविजुअल केयर प्लान बनाने में देखें तो उसके अंदर इनपुट लिया जा रहा है वो है काउंसलर का, बच्चों की केस हिस्ट्री का इनपुट लिया जा रहा है। बट कोई भी एक इंडिविजुअल केयर प्लान तब तक ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर उससे बच्चे से जुड़े सब लोगों के इनपुट ना हो। तो उस बच्चे से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है उसका केयर गिवर या उसका हाउस मदर, हाउस फादर। क्या हम उस हाउस मदर, हाउस फादर के इनपुट उसके इंडिविजुअल केयर प्लान में ले रहे हैं? जब तक नहीं पता चलेंगे तब तक बच्चे की स्ट्रेंथ, वीकनेस के बारे में पता नहीं चलेगा। क्या हम उस इंडिविजुअल केयर प्लान में उसका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो उसका टीचर है उसकी बात कर रहे हैं, तो उस केयर प्लान में उसका इनपुट नहीं रहेगा, तब तक आप इनपुट अच्छा नहीं मिल पाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पर्सन रहता है उसके पीयर ग्रुप। क्या उसका जो पीयर ग्रुप है उस बच्चों के साथ बैठकर कुछ ग्रुप एक्टिविटीज के माध्यम से क्या हम उस बच्चों के स्वॉट एनालिसिस करने की, उसके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो इन 3 या 4 जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो CCI के अंदर ही रहते हैं, हम उन सबको जब तक एक तरह से साथ नहीं लाएंगे तब तक कोई भी केयर प्लान इफेक्टिव नहीं हो सकता है। सो इस केयर प्लान को लेकर मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट था सारी अथॉरिटीज को लेकर, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कंपाइल करने को लेकर मेरा एक रिक्वेस्ट था। और तीसरा मेरा रिक्वेस्ट था कि हम जो 2000 रुपीज सपोर्ट अमाउंट की बात है उसकी प्रोसेस अगर हम पहले से शुरू कर लेंगे तो शायद हम इसको एक सिस्टम के अंदर ला पाएंगे और ये स्मूथ फंक्शनिंग की तरफ प्रोसेस करेगा। थैंक यू। प्रीति जी? I almost wanted to supplement जो अब तक कहा है, इंडिविजुअल केयर प्लान, इसमें यूनिफॉर्मिटी लानी जरूरी है, वो मेन स्ट्रीम करना जरूरी है। उसी के साथ चौबे सर ने बहुत अच्छा कहा कि अगर आपको लगता है कि ये बच्चा आपके इंस्टीट्यूशन में 18 साल तक रहने वाला है फॉर वॉट एवर रीजन, तो फिर जल्दी से जल्दी 12 साल, खास करके आई फील उसका 10th होते ही स्टार्ट वर्किंग ऑन एन आफ्टर केयर प्लान। और आफ्टर केयर प्लान करते समय ना हम इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स के बारे में नहीं बात करते, हम अभी भी बच्चे को किचन में भेजते हैं जहां पे बच्चा सिर्फ 50 लोगों का खाना कैसे पकाना है वो सीखता है, उसको नहीं पता होता है कि मैं 2 जनों का खाना कैसे पकाऊं।
ये इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स हम नहीं देते। वहां पे हम जेंडर बायस भी होते हैं। खाना पकाना हम सिर्फ लड़कियों को सिखाते, लड़कों को नहीं सिखाते हैं। हम डिजिटल और टेक्नोलॉजी को लेकर जो एक्सपोजर है वो लड़कों को देते हैं, लड़कियों को नहीं। उसी के साथ हम बहुत बार ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में बात करते, मगर हम एंटरप्रेन्योर स्किल्स के बारे में नहीं बात करते। हम नहीं देते बच्चों को एट द एज ऑफ 15 से कि बिजनेस स्टार्ट करना माने क्या होता है, हाउ डू यू एक्सेस स्मॉल माइक्रो ग्रांट्स टू स्टार्ट माइक्रो बिजनेसेस, इसके बारे में हम कभी नहीं। और अगर बात भी करेंगे तो वो लड़कों के साथ करते, लड़कियों के साथ नहीं। तो कहीं ना कहीं जेंडर बैलेंस रखना बहुत जरूरी है इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स को लेकर। इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल के साथ हमको सॉफ्ट स्किल्स, अभी सॉफ्ट स्किल्स यू डोंट हैव टू वेट थ्रू अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ना, रोजमर्रे की जिंदगी में हम सॉफ्ट स्किल्स दे सकते हैं, हम लाइफ स्किल्स दे सकते हैं। सेफ्टी रूल्स, हम इंटर्नशिप में जानना चाहती हूँ आज तक कितने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन ने CWC को कन्विंस किया है कि 10th के बाद हमारा बच्चा 3 महीना 2 महीना छुट्टी पर है, उसको उसके लगाव के ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक इंटर्नशिप जुड़ा दे। ऑफ कोर्स इट मींस सेंडिंग द चाइल्ड आउट, बट डू द सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी को लेकर बच्चों से बात करो और एक मैकेनिज्म डेवलप करो जिससे सुपरविजन रहेगा, बच्चा खुद सुरक्षित महसूस करेगा। और पर्सनल सेफ्टी रूल्स हम बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि पर्सनल सेफ्टी रूल उसको 18 साल के बाद भी चाहिए ना। उसी के साथ जो दीपेश बोल रहा था ना, एरिया मैपिंग, रिसोर्स मैपिंग, क्या हम बच्चों को रिसोर्स मैपिंग इंट्रोड्यूस करते हैं क्या? डज ही नो कि उसको कल बाहर जाने के बाद तकलीफ होगी तो देयर इज समथिंग कॉल्ड वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, देयर इज समथिंग कॉल्ड एट अ पुलिस स्टेशन अ स्टेशन इंचार्ज। ये सब जो वेरी बेसिक हमें लगता है, मगर हम वो स्किल्स नहीं देते और हम सिर्फ लाइवलीहुड ट्रेनिंग हमको लगता है हो जाने से द चाइल्ड इज रेडी टू गेट इनटू द आफ्टर केयर रेल्म। तो ये सब कुछ, एंड ऑफ कोर्स इंडिविजुअल केयर प्लान सीरियसली लेना, बच्चों की आवाज सुनना इंडिविजुअल केयर प्लान में। अगर हम बच्चों की आवाज सुन सकेंगे विदाउट रिपरकशन, उस बच्चे ने कुछ बोला उसको बैकलैश नहीं होना है। Without backlash, how can we listen to the voices of children and co-create a rehabilitation plan for them? हमारा co-creation नहीं हो रहा है, और वो अगर हम कर पाएंगे, I'm sure we'll have a sustained, rehabilitation plan for children. Thank you, Vipul. Yeah. So, audience, we are willing to take questions, so please raise your hand so that we can get you live. In the meanwhile, I have a question. Okay, ये जो for many of these initiatives हम लोगों को resources लगेंगे, चाहे वो NGOs हों, चाहे वो CWC हों, चाहे वो DCPO हों, और चाहे वो CCIs हों। जो गवर्नमेंट स्कीम है, अभी जैसे ICPS की स्कीम है, उससे it has actually provided for certain amounts of money to be paid, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए, it is not implemented in a uniform manner. जो पैसा मिलता है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट को, वो कभी 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी लमसम में मिलता है, कभी not in a month by month कि आपके पास 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे into so much, this is your money, and next month you got 60, this is your money. तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि what can we do together, क्योंकि CCIs की भी प्रॉब्लम है और आप लोगों की, राइट, जो CWC हैं, DCPO, आपकी अलग इश्यूज हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, इस प्रोसेस को कैसे स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है? 2 बातें हैं, एक तो ज्यादा फंड्स होने चाहिए, लेकिन पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसका डिसबर्सल ऑफ फंड्स, हाउ कैन दिस प्रोसेस बी स्ट्रीमलाइन? इस पे कोई सजेशंस हैं क्या? इस पे अगर सर
परम जी शुरुआत करें कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट अमाउंट डिसबर्स होता है उसका क्या प्रोसेस रहता है, तो शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी मेरा थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग के अंदर फंड्स जो है मेनली गवर्नमेंट की तरफ से आता है। गवर्नमेंट की तरफ से फंड आने में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट को अपनी फाइल रेडी करके, सॉरी सीसीआई को अपना जो है बजट प्रपोजल बनाकर डिस्ट्रिक्ट को देना होता है। डिस्ट्रिक्ट उस प्रपोजल को सबमिट करता है स्टेट को, फिर स्टेट सबमिट करता है सेंट्रल को। ये एक बहुत बड़ा लंबा चैनल है। तो परम जी आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये एग्जैक्टली ऐसे ही चैनल है, तो शायद सजेशन ज्यादा बेहतर तरीके से आ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो जो फंड रिसीव होने का चैनल रहता है वही नहीं पता है। सर अभी जो आवाज आ रही है सर? जी हेलो। हाँ, ये जो है फंड का, अभी जो यहाँ पे जो सीसीआई है इसमें अलग अलग तरह के हेड्स है, जैसे कि प्लान इंस्टीट्यूशन है, नॉन प्लान में है और गवर्नमेंट होम्स है, ऐसे अलग अलग कैटेगराइज होता है। जो प्लान इंस्टीट्यूट है ये सारे गवर्नमेंट एडेड है और गवर्नमेंट होम है। गवर्नमेंट होम का तो डायरेक्टली फंड आता है ट्रेजरी से, मतलब गवर्नमेंट के माध्यम से डायरेक्टली उनके अकाउंट में जाता है। और जो प्लान इंस्टीट्यूट है उनको भी जैसे कि जैसे 6 महीने का, हर महीने 3 महीने या 6 महीने में गवर्नमेंट ग्रांट रिलीज करती है। प्रोजेक्ट सैंक्शन कमेटी होती है, जैसे पैब मीटिंग होता है SCPS के अंदर, वहाँ पे जैसे सैंक्शन होता है तो फंड रिलीज हो जाता है। अभी जो सीसीआई का जो ग्रांट है, प्लान सीसीआई का, वो सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आता है, उनके वहां से आपका उनका सभी का ग्रांट रिलीज होता है। तो अगर ये बजट देना है तो अगर मार्च के पहले, अगर जैसे कि मार्च शुरू होता है, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो सीसीआई उनका बजट देना पड़ता है, क्योंकि उनके पास स्टाफिंग पैटर्न कितना है या उनके पास अभी कितना ग्रांट अवेलेबल है या नीड्स की जरूरत है वो तो देना ही है। और उसके साथ जो भी फंड आता है उनके पास उसका यूटिलाइजेशन देना पड़ता है। अगर यूटिलाइजेशन टाइम पे आता है तो उस हिसाब से ग्रांट तुरंत रिलीज हो जाता है, रिलीज होने में कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट तो चाहती है कि जल्दी से जल्दी उनका ग्रांट चला जाए ताकि बच्चों को उसका बेनिफिट मिले। तो कभी कभी क्या होता है कि फंड्स का जो आता है, कभी इनका संस्था के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ क्वेरीज आते हैं इंस्पेक्शन में, तो वो उसका जब तक क्वेरीज पूरा नहीं होता है तो फंड रिलीज होने में दिक्कत आता है। तो सीसीआई भी अगर प्रॉपर ध्यान दे कि उनका जो भी क्वेरीज है वो जल्दी फुलफिल करे या उनके कुछ प्रॉब्लम्स हो तो सॉर्ट आउट करे, तो ग्रांट रिलीज होने में कोई दिक्कत नहीं है। हेलो। हाँ जी, तो मेरा एक सुझाव था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का है, मुझे लगता है कि हाउ कैन वी मेक दिस पेपरलेस, टचलेस। ओके, तो अगर from the government side, I think the intent is to make sure that the institution is working as per proper standards. ठीक है, and how many children are there? If these two conditions are met, then according to me, I think the government should be happy to provide whatever funds are available, particularly for the plan expenditure. That they should be happy to provide, right? Because it is going towards for the need of care. So, if we can come up with a mechanism, right, by which the uh, the institution can be measured. परम जी आपने पहले काम किया है उसके ऊपर, some tool to measure the institution as per the JJ Act and the requirements of the JJ Act. So if there is a standard tool like this which can be implemented, which actually gives a dashboard to the authorities, whether at the district level or at the state level, for all the childcare institutions in their area, right, then I think it will help in the supervision and the monitoring. And number two, if apart from this we can capture some child data, okay, तो हम CSA में अगर मैं शेयर करूं तो हम साल में 2 बार हेल्थ चेकअप करते हैं, और हेल्थ चेकअप इसलिए करते हैं क्योंकि उससे प्रिवेंटिव मेजर्स, हेल्थ मेजर्स कर सकते हैं,
ठीक है, टेक केयर कर सकते हैं। और दूसरा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें उस संस्था का जो हेल्थ स्टेटस है उसका हमें मालूम चले। तो हेल्थ चेकअप से BMI मालूम चलता है, जो न्यूट्रिशन के बारे में, हाइजीन के बारे में बताता है। जो हेल्थ चेकअप है उससे मालूम चलता है कि कितनी स्किन की प्रॉब्लम है, कितनी डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वगैरह वगैरह, जो कुछ हाइजीन के बारे में बताता है। So that becomes some data that we can use for seeing this is that status and what is the improvement that needs to be done. तो मेरा ये सुझाव था कि अगर हम इस तरह का चाइल्ड डेटा कलेक्ट करें, right, and we also have a tool for measuring the CCI and where they need to improve, and then we link the funds to these metrics. We link it to the number of children and we link it to achievement of certain minimum standards within a CCI. Then I think we can really have a new system, a new way where it becomes an objective and a completely paperless system based upon data, which because the data is coming from the source, which is children, you can actually rely upon completely. तो अभी तो खैर दिस इज अ बिग टॉपिक, बट सिंस वी आर ऑल सेइंग कि वो इस पेंडेमिक में हम लोगों को कोलैबोरेशन करना चाहिए, एक दूसरे के आइडियाज लेने चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस लेना चाहिए, तो मैं ये थॉट छोड़ना चाहता हूँ that one of the big reforms that we can think about is the whole way in which the intent of the ICPS scheme and the disbursement of funds can be streamlined and can be made direct transfers to the bank accounts of the beneficiaries, whether they are care leavers or whether they are child care institutes. From a child care institute, अगर उनको मालूम है कि हर महीना इतना पैसा आएगा पहली तारीख को या 5वीं तारीख को, then they can rely upon that, right? So it's not only funds, it's also कि वो funds reliably हर महीने आए, right? That is important. तो वो जो है, अगर हम थोड़ा सा रिफॉर्म के बारे में सोचें, थोड़ा एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू लें, what are the checks and balances that the government is looking for and how can we provide this through data such that it becomes less subjective, I think we will find that this will be a very, very big improvement for the industry. So chaliye, we are nearly at the end of our session. If there are any questions, Satyajit, are there any questions? बिल्कुल, प्रीति जी कुछ कहना चाह रहे थे. प्रीति जी. मैं जो आप बता रहे थे अबाउट मेजरिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, तो हमारा खुद का अनुभव मुझे बताना था कि वी रन अ वेरी स्मॉल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन. वो एक चिल्ड्रंस होम है लड़कियों के लिए, और साल में 2 बार हम मॉनिटर करते वेरी फॉर्मली. और हमने जो इंडिकेटर यूज किया है वो है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन के लिए जो इंडिकेटर यूज किया है. जो स्टैंडर्ड्स अगर नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलता ही नहीं है. सो वी हैव यूज दैट, और उसमें हमने थोड़े सेफ्टी मेजर्स को लेकर भी ऐड किया है. एंड साल में 2 बार जब हम वो टेम्पलेट यूज करते हैं, ऑफ कोर्स बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है उसमें. Children are part of the reviewing process, of the monitoring process, और जहां जहां हमें दिखता है कि there is still a gap, वो गैप हम बच्चों के साथ मिलकर डिस्कस करके, बजटरी प्रोविजन करके, एंड वी हैव टू रिपोर्ट आल्सो अबाउट इट टू द टू द मैनेजमेंट कमिटी, टू द चिल्ड्रंस कमिटी. तो वो एक सिस्टम आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड कोई भी नए टेम्पलेट की जरूरत नहीं. हमारे स्टेट रूल्स इतने बेहतरीन हैं फॉर यू टू मॉनिटर कि आप स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं. और इसको लेकर मुझे और एक चीज बतानी थी अगर समय है तो. हम बहुत बार चाइल्ड फ्रेंडली चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस कहते हैं. ये मेरा बहुत पर्सनल मत है कि चाइल्ड
इंडिकेटर हम चाइल्ड फ्रेंडली पेंटिंग्स तक सीमित न रखें। मुझे ना जब भी चाइल्ड फ्रेंडली पेंटिंग्स देखकर कोई मुझे बोलता है, या बंक बेड्स देखकर कोई मुझे बोलता है प्रीति वो होम जाकर देख कितना सुंदर पेंटिंग किया है, वहां बंक बेड्स है, फॉर मी वो टोकनिज्म मुझे लगता है। मुझे सही माने में अगर चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है या नहीं अगर देखना है, तो क्या उस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में बच्चों को सुना जाता है विदाउट रिपरकशंस, विदाउट बैकलैश? क्या बच्चों के राइट्स समझते हैं जो संस्था चला रहे हैं? डू दे अंडरस्टैंड व्हाट चिल्ड्रंस राइट्स आर? और वो राइट्स एक्सेस करने के लिए क्या वो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में? वो मुझे चाइल्ड पेंटिंग और बंक बेड से ज्यादा महत्व का लगता है। सो थैंक यू फॉर लेटिंग मी शेयर दिस ओपिनियन ऑफ माइन। No, I think Preeti ji, जैसे आप you have developed measures and you follow that process, ठीक है ना? ऐसे हम लोगों ने कुछ काम किया है, और भी संस्था है, आंगन वालों ने काफी कुछ काम किया है, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि अगर वो स्टैंडर्डाइज कर सकें, और अगर स्टेट के पास, चाहे वो डीसीपी हो चाहे वो सीडब्ल्यूसी हो, अगर उनके सामने एक डैशबोर्ड हो, तब उनको मालूम चलेगा कि क्या जितने उनके संस्था उनके केयर में हैं उनमें क्या कमी है और क्या अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों। यहाँ परम बता सकेगा, एटलीस्ट महाराष्ट्र में है कि जब भी डीसीपी और सीडब्ल्यूसी मॉनिटरिंग विजिट के लिए आते हैं, वो एक टेम्पलेट लेकर आते हैं और उस टेम्पलेट के अनुसार वो इंस्पेक्शन करके देखते हैं कि ये सब चीजें है या नहीं। सो मे बी परम कैन टॉक अबाउट इट। महाराष्ट्र में मुझे बहुत अच्छा अनुभव है, मुझे पता है चौबे जी एंड सम सीडब्ल्यूसीज, क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरेक्शन हुआ है मध्य प्रदेश के साथ। वो भी विजिट करते समय वो फॉर्म, मॉडल रूल्स में एक फॉर्म है और बहुत डिटेल्ड फॉर्म है, उसका इस्तेमाल करते हैं और रिमार्क भी देकर जाते हैं इन केस दे फाइंड देयर इज अ लैप्स इन इट। सो वो अगर हम मेन स्ट्रीम कर पाए बिसाइड्स द अदर टूल्स जो बहुत जनों ने बहुत अच्छी तरह से इवॉल्व किए हैं। मैडम फॉर्म 21 हम यूज फॉर्म 41 यूज करते हैं, नमुना 41 असं आपण त्याला म्हणतो। फॉर्म 41 में हम क्या करते हैं कि जब संस्था में जाते हैं, संस्था में जाने के बाद पूरा क्या क्या है उसमें, टीवी लेके इंटरनेट प्लेग्राउंड से लेके सब उसमें इंक्लूड है, वो सब हम टिक करते हैं। उसके साथ हम जब प्रीवियस विजिट में जाते हैं तो जो ऑब्जर्वेशन हमने लिखा है विजिट बुक में, उसमें कुछ लिखते हैं कि ये एक पेंडिंग है, ये करवा लो। तो नेक्स्ट विजिट में वो हुआ है या नहीं हुआ है उसका भी हम मॉनिटरिंग करते हैं। उसमें हम दो चीजें देखते हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखते हैं, दूसरा बच्चों के केस फाइल मेंटेन किया है, केस फाइल में केयर प्लान किया है क्या, उसके बाद केस रिकॉर्डिंग। केयर प्लान अलग है और केस रिकॉर्डिंग अलग है। केयर प्लान में बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से क्या किया है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या उसके साथ कितनी बार बात हुआ, उसका क्या क्या उसका इंटरेस्ट है। और केस रिकॉर्डिंग में उसका जो भी सिचुएशन है उस महीने में, तो उसका वो प्रॉपर होता है या नहीं होता है। कभी कभी एक बच्चा कभी बहुत उस महीने में बहुत गुस्सा आ गया उसको या अग्रेसिव था, नेक्स्ट मंथ में वो साइलेंट हो गए, तो क्यों हुआ है, क्या प्रॉब्लम था, पहले गुस्सा होने का क्या कारण था, ये सारी चीजें उसमें आती है। तो ये सब मॉनिटरिंग करते समय हम बच्चों से भी बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वहाँ के जो भी वर्किंग स्टाफ है उनके साथ बात करते हैं, उनके काउंसलर के साथ बात करते हैं और उनके सुपरिटेंडेंट के साथ बात करते हैं। और उसमें जो भी कुछ लैकुनाज है उसको फुलफिल करने के लिए हम उस विजिट बुक में रिमार्क डालते हैं कि ये उन पे करना है, तो नेक्स्ट टाइम वो फिर हुआ है या नहीं हुआ है वो भी हम देखते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत सपोर्टिव है। तो जो भी सीसीआई है उनको एक गाइडलाइन मिलता है कि हमको और अच्छी तरह करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है और कैसे कर सकते हैं। और साथ में जो भी उनको सपोर्ट लगता है, टेक्निकल सपोर्ट, वो हम डीसीपी की तरफ से या सीडब्ल्यूसी के माध्यम से या डीडब्ल्यूसीडी की तरफ से देने की कोशिश करते हैं ताकि उनको काम करते समय दिक्कत ना आ जाए। तो परम, मैं सब पैनल से ये कहना चाहूंगा कि चलिए, वी हैव नाउ गॉट अ वे ऑफ मॉनिटरिंग, ठीक है। क्वेश्चन इज हाउ डू वी स्टैंडर्डाइज दिस,
right? Across states, within a state and across states. So that you can actually rank CCIs, you can compare them, and you can identify what improvements each one of them needs to do from year to year. Because the idea should be to improve the level that they are at continuously. And my second question, right, is really how can you use this data to release funds? Why should we think about funds coming from budget and this, that, etc.? Why should we not release them based upon outcomes? So, Kripa ji, आप कुछ कहना चाहेंगे? We have just a little bit of time. We have to wrap up. So, last comment. Your question, second question which you asked, धारा 54 में प्रारूप 46 में जो डिटेल्ड इंस्पेक्शन होता है, that is, it has nothing to take with the fund release. So it needs to be addressed. जो actual position है fund release का और जो हो रहा है vis-a-vis जो होना चाहिए, there is a gap. I'll agree. And I think there is a gap unanimously across the country. It's not that only one state is facing. So this issue needs to be addressed with the authorities, maybe the top authorities like WCD Commissioner or maybe the Minister WCD Central Minister. Because the concern is that if money doesn't come on time, ultimately who is going to be sufferer? Child is going to be the sufferer. और जो प्रीति जी ने very rightly mentioned कि बच्चे की सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, सिर्फ पेंटिंग्स लगा करके हम चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना रहे हैं क्या? तो if the child is sufferer because of anything, maybe the money, because the money is not coming on time, the CCI will not provide the whatever the things they need to provide. So if the money is not coming time, ultimately child is going to suffer, which means we are not able to create a child-friendly environment. So this issue definitely needs to be addressed, maybe through you or maybe someone else, but it needs to be addressed so that the gaps can be fulfilled. I think this is the area of very collective effort. Yes, yes. कोई एक individual या individual संस्था का effort नहीं है. I think we all have to agree upon how we should be able to measure and what this whole process should be, such that it becomes transparent, it becomes electronic, it becomes just routine. If you are doing good work, funds will come. End of story. No questions asked. Like, what will be asked is what is the work you are doing. आप मुझे results दिखाओ, आपको funds मिलेंगे. बस, simple. So anyway, चलिए, on this note, I want to bring this webinar to a close. It is really nice to talk to all of you, to meet all of you. I think there have been a lot of takeaways in this session. Okay, I think ये जो panel के हर member ने कुछ ना कुछ अपने ही अंदर से, अपने ही due to your own desire, you have done something new. You have gone outside the standard boundaries to take care of children in this very, very difficult time. And I think these are very good examples for others to get inspired by and to follow. So I hope that it would have been of some use for our participants. And let's see how we can continue this dialogue, take it further. Chaliye sir, madam, बहुत अच्छा हुआ. Thank you, Vipul ji, Satyajit, and all those who did the amazing work, back-end work. Thank you so much. And Thank you, madam. All the panelists, so much to learn. Thank you. Thank you. There is a sorry, before we all go, there is a questionnaire being circulated. Please fill up that questionnaire. It will give us some feedback about this webinar and how to also take this further. Thank you all.